पर 10 से 15 साल अगर कंपनी चल रही है तो फिर जोमेटो बन जाता है। हमारा स्टूडेंट पहले आ जाता है, जो पहले आ गया उसको एजुकेशन लोन नहीं, उसको पहले एडमिशन का ज्ञान चाहिए। अब वो कैसे दें? So this is what I tell my team: if you get a journey to join as early as possible and then go all in, but be patient. काफी लोग सोच रहे हैं एजुकेशन लोन में करना चाहिए। नाम बहुत खराब था, एनपीए बहुत हाई था। The payment counselors where they charge money, there's a very valid reason. And he's thinking मैं यूके जा रहा हूँ, AI का ना ये करूँगा, you know मेरी ना मतलब तुझे लगता है 50 लाख जॉब मिल जाएगी। मेरा understanding है कि like that is one differentiating factor between the US and the Indian ecosystem. Indian ecosystem, everyone wants to build everything. Hey everyone, welcome back to yet another episode of the Living Pod by Saurabh, where we try to learn, we try to then live that learning and then eventually achieve. Because as I say, when you live, you learn and you achieve, you stay happy. On that note, today we have someone, or I would say few of them, you know, who make this industry happy because they are lending money to students, which is very important for education partners, very, very important for universities, and of course for all of us, including university living, because जहाँ ज्ञान वहाँ धन, और जहाँ ज्ञान धन वहाँ जयेश, अमन and Ankit, right? And also today I manage, and it's an achievement, to get my co-founder Mayank, second time, and even a bigger achievement, my marketing head, who we are pushing to become a CMO and a founder, because he don't listen to me. Today he listened, probably because he's seen the journey of the recently big you become a co-founder, right? Yeah. Right, from a CMO Yeah. to a co-founder. Yeah. You know, यही रीजन है, बस यही रीजन है, क्योंकि आप मेरे हाथ में आते नहीं हो। चलो गुड, तो मुझे एक कैरेट मिल गया, ठीक है। So on a serious note, you know, all three, you know, I believe if someone will ask why we don't do education loan, because there are people who have the same DNA, probably are doing better than us if you would have done, you know. So I like, why to reinvent the wheel? Why not collaborate and work together? You know, so it's also a way to collaborate wherein very similar DNA, right? 2015, Yeah, right? Bootstrap, yeah, right? काफी हद तक। Yeah. Now काफी हद तक, हाँ, Yeah. वो भाई वो बूटस्ट्रैप ही है। You know, वो 1-2 महीने उठा के 50-100 करोड़ का रेवेन्यू करना बूटस्ट्रैप ही होता है। अदरवाइज 100 करोड़ करके 2 मिलियन वाले तो बहुत सारे हैं, राइट? सो 2015, 2 फाउंडर, you know, and classmates, schoolmates, We used to work together. Capital One करके एक कंपनी, वहाँ पे साथ में काम किया था काफी टाइम तक। right? And then you got another mad person who believe in your क्या बेचा था यार 2015 में, you know, again कुछ same नहीं था। story, One of my biggest achievements. वो भी IIT, हाँ IIT, क्या बेचा था, क्या वो बताएगा। नहीं आपने क्या बेचा था, उसने क्या किया था, बात नहीं कर रहे। What, on a serious note, like what was that when what you seen in Aman, and then why 10 years, right? Yeah. Wow. पक्का 10 साल 2016, 9 साल हो दूसरा गए। कंपनी, but then how was it, how you got Aman, your Aman, and what was the pitch and why you joined them? Because it's your, you know, it's Yeah. it's about you guys, right? We'll share our journey, but would love to hear yours. Yeah, So हम लोग के लिए तो सिंपल था कि like I think जैसा you said कि generation I started in 2015 कि अब कुछ करते हैं to help students get loans, and as we were figuring it out, I think we're doing our classic let's reach out to universities, this and that. और उसके बाद हुआ कि कुछ internship कुछ लोग ढूंढते जो हमें help कर पाएंगे कुछ चीज़ों में, and I went back to IIT Kanpur, my alma mater, for an event. वहाँ पे हम लोग कुछ pitch कर रहे थे. We got a couple of folks who said कि हम कुछ देखेंगे, but करते eventually one of them introduced us to Aman, and so Aman was still in his final year, and I think Jan या Feb में Aman said कि मैं ये एक project पे काम help कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं थोड़ा part time help कर दूँगा. Like okay fine, ठीक है, चल करते हैं. And then I think उस समय he helped us, and मतलब it was just luck, pure luck. Like I went back to campus again, had a detailed chat with him. IIT Kanpur. IIT Kanpur. He helped us out, and I remember कैंपस में गए थे. आई थिंक कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, कुछ था OAT OAT में,
सो कैंपस में ओपन एयर थिएटर है, आई रिमेंबर उसके बाहर बैठ के फिर डोमिनोज का पिज्ज़ा एंड स्टफ ऑर्डर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, एंड आई थिंक ऑब्वियसली आई मीन एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज आर बिल्ट ऑन पीपल, मतलब राइट, बिल्ट ऑन अ मतलब टीम इज ऑल दैट मैटर्स। मेरे को 10 साल में बस यही समझ लगी है। आई थिंक फॉर मी इट वाज जस्ट अ केस ऑफ कि जो हम लोग ने सोचा था जब हमने स्टार्ट किया था ज्ञानंद की क्या बनाना है इवेंचुअली, was just communicating it the same vision to him, and him being mad enough, stupid enough, yeah, smart enough to believe in that vision, right? अब वो stupid है, smart है, वो तो eventually outcomes बताएंगे, but मतलब that was the thing. It was just an honest communication of this is what we want to build. It is big, it can be big, and it can fail as well. I mean, I think I was clear with that. So that was just the same communication. Now, like I said, he was mad enough, yeah, smart enough to accept that वो ये बताएगा. आई थिंक जब अंकित से मिला था एंड फिर जेनेट And से where are you from? कहाँ से हो आप? सो मैं इंदौर के पास एक बहुत छोटा सा टाउन है शामगढ़, तो दैट्स वेयर आई बिलोंग। कैंपस के बाद था कि कुछ करते हैं, मतलब जॉब वॉब लगी थी बट दैट वाज नॉट एक्साइटिंग इनफ कि यही करना है अगले 5 साल। सीनियर्स को देखा, ठीक है 4 साल करके वही जीमैट दे रहे हैं, MBA करने जा रहे हैं, काफ़ी सेट पाथ था, तो वो तो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि यार, क्योंकि ये 2013-14 की बात है। मैं 16 में ग्रेजुएट 15-16 की बात बट 15 के एंड में, क्योंकि 15-16 में स्टार्टअप दौर आ गया था, फंडिंग Right, होना yeah. शुरू हो गई थी, तो कुछ लोग जीमैट GRE दे रहे होंगे, Right. बट बहुत लोग अपना स्टार्ट भी कर चुके होंगे और बड़ी बड़ी स्टोरीज आ गई थी कुछ। या एंड आई थिंक मैं अपने सेकेंड ईयर में एक किसी स्टार्टअप में करने गया था, वहाँ पे भी कपल ऑफ सीनियर्स फ्रॉम माय कॉलेज, तो उनके साथ 3-4 महीने काम किया था, तो बहुत मजा आया था कि यार कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बिल्ड होता है। बाद में दैट गॉट एक्वायर्ड बाय बुकमाईशो, तो लगा कि हाँ मतलब समथिंग इस तरह का अगर कुछ बिल्ड किया लाइफ में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मोर ऑफ एन इमोशनल डिसीजन। बाकी ये Tier 2 Tier 3 वाले होते हैं ना, हम इमोशनली रह जाते हैं, इसीलिए हम सही भी रह जाते हैं। राइट But yeah, हाँ, बाकी उस समय व्हेन आई मेट देम, तो 2 चीज़ें वाज मेरे लिए स्टूड आउट वाज कि दे वर लिविंग देयर जॉब्स इन US, प्रॉब्ली अर्निंग इन crores, and moving back to India to start something in the education sector, which is जो पर्पस है कि यार फाइनेंसिंग करनी है। जेनेश की पर्सनल स्टोरी है कि he got help at the right time and that's why he is here and what he could achieve. And second, ethics. मतलब उस समय जो 2-3 महीने में जो भी काम हुआ, जो भी बात हुई, जो भी क्लैरिटी हुई, आई थिंक दैट मैटर्ड टू हिम लॉट। तो आई फेल्ट कि हाँ जिंदगी में काम तो करना ही है, अच्छे लोग हैं, लेट्स सी इफ इट फिट्स, एंड देन इवेंचुअली इट्स बीन 10 years नाउ। तो जो पैरा परसेप्शन था कि अच्छे लोग हैं अभी भी, हाँ, क्योंकि फाउंडर, को फाउंडर और खासकर मार्केटिंग एंड CMO एंड ऑल एक बहुत ही अलग वो रहती है ना, पैसे देते रहो, बुकिंग देते रहो, इतना ही अच्छा कर लो, जितना ही अच्छा कर लो, ROI और बेटर हो सकता है, राइट। तो हमेशा टफर रहती है, और उसमें टफर में एटलीस्ट हमारे तो बहुत टफ लाई होती है, एंड दैट्स वेयर माय एंड कम इन। या तो ये चिल्ला रहा होता है, सुन रहा होता है, या मैं चिल्ला रहा होता है, या मैं सुन रहा होता हूँ, राइट। there's a very I mean there's a trust level, but still there's at least at my end I also keep pushing कि यार अभी ये नहीं हुआ यार, अभी ये मिस हो गया होगा, अभी नहीं, and also that's coming from my background wherein I trust everyone, I trust no one including myself, Right. but तुम्हारी कैसी एक vibe है या आई थिंक इट्स मोर टू डू, सबको अपना अपना रोल करना है, राइट। अंकित का रोल है गाली देना, तो उनको देनी ही पड़ेगी, मतलब उसके अलावा ऑप्शन चलेगा नहीं काम। इंग्लिश, हिंदी या कानपुर वाली? आप कानपुर मैं पला बड़ा भागलपुर पे था। आते हैं आपके तो मोटी है। नहीं वो नहीं, अच्छा। मोर प्रोफेशनल गाली I would say। वो तो और तेज लगती है। एंड आई थिंक मतलब वो तो होना ही पड़ेगा, बट उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, राइट। So that happens. I think we all push each other. I think there has been instances when I have been after Ankit and Janish, यार ये नहीं हो रहा है, आप करके दो, it's your job. So I think that's the equation. बाकी you guys can add. हाँ नहीं बिल्कुल fair, मतलब that's exactly how it's been. मतलब हमारा one thing that we'll discuss in our journey as well, कि because of the focus on the bottom line, we've been very analytical कि ये करना है तो deliberate and analytical. तो what should we do? Why should we do it? And how do we know the decision that we made were right or wrong, and therefore learn from those decisions and therefore keep those learnings so that we don't make bad choices in the future. So ये वाला जो cycle है,
ये Aman intuitively understands, मतलब in our journey that's something at the start he didn't understand it that well because there's a lot of creative Right. push की ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, but थोड़ा ये हमारे पे रब ऑफ हुआ है कि थोड़ा क्रेजी भी होना चाहिए और थोड़ा हम इस पे रब ऑफ हुए हैं कि थोड़ा एनालिटिकल भी होना चाहिए. Very So interesting. that's been part of the journey. Very interesting. Very interesting. Very, very interesting. In fact, a big shout out. And that's why I started this point. There are people, who join as interns and they become their first job, associate, senior associate, manager, senior manager, AVPs, directors, CXOs, and then co-founder. A perfect playbook for anyone who want to part of any startup. And Yeah. especially in an early journey, because the best thing if you can start up, but it's the most risky and it's not for everyone, right? So this is what I tell my team: if you get a journey, to join as early as possible and then go all in, but be patient. Because हमें खुद ही नहीं पता यार 5 साल में एग्जिट मिलेगा या 7 साल में फंडिंग होगी या 10 साल में होगी, पर 10 से 15 साल अगर कंपनी चल रही है तो फिर जोमेटो बन जाता है, वो कंपाउंड आ जाता है, राइट? बट बोलना बहुत आसान है. आपने आईआईटी किया, ड्रॉप हुए, शादी, गर्लफ्रेंड होगी, उनके माँ बाप हो गए, शादी, हुए ना पॉइंट नियर दैट पॉइंट, कंपनी के हुए हो गए, खुद क्वेश्चन हो गया यार मेरा दोस्त आईआईटी है और ये सब है, वो यार 2 करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, ये फंडिंग हो गई, वो फंडिंग हो गई, राइट? तुम इन पे पहुंचो हो गएगा भाई देख ले, यही है, अच्छे लोग हैं हम, अच्छे लोग तो है भाई, शादी भी करनी है, जिंदगी भी चलानी है. तो वो कन्विक्शन कैसे रही? इमोशनल हो, मैं समझ रहा हूँ, बट स्टिल यार जब आसपास वाले आ रहे हैं, उनको पैसे कमा रहे हैं, फंडिंग की एक ऐसी रही है कि किसी को भी मेरा कुछ भी मिल रहा है, रियल स्टोरी, राइट? तो कन्विक्शन का तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो टीम राइट है या नहीं है. मतलब फॉर फ्यू कंपनीज दैट स्टार्ट दे गेट, मतलब इन एक्चुअली फंडिंग टर्म्स बोलो अर्ली सक्सेस मिल जाएगी, बिजनेस तो टाइम लगता ही है, राइट. तो टीम अच्छी है नहीं है, इंटेंट सबके अच्छे है नहीं है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है नहीं. तीनों चीज राइट टिक होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, टीम सही है तो बन ही जाएगा. आई थिंक दैट्स द कन्विक्शन. बाकी फोमो तो सबकी लाइफ में होते हैं, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ फोमोस, एंड इट्स ए साइकिल जो हमेशा आएगा. हमेशा यू इवैल्यूएट, you do things, and objectively you have to take decision, and I think always the decision has been कि ज्ञानदन can be that place and ज्ञानदन can be that company जहाँ पे मैं अपना long period of life दे भी सकता हूँ, and then it can become something which can be legacy at the end of the day. Family, girlfriend, got married couple of years ago. Before that have उन्हें कैसे कन्विंस किया? 10 साल से कन्विंस. मेरे फादर इन लॉ सेंट्रल बैंक में थे 30-40 साल. तो मतलब obviously my wife तो got convinced otherwise, but they understood very well कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ लाइफ में, क्यों कर रहा हूँ, and he was primarily very impressed by कि हम education and finance के intersection पे हैं, कि हम purpose is good. हाँ, purpose is good. So I think it was easy, मतलब कोई as such Again, there I was would no say roadblocks. अच्छी बात यह है कि again मैं तो I come from Meerut, right? So जब आप छोटे शहर या Tier 2 Tier 3 में आते हो तो एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशन घर वालों की कमी होती है, बिकॉज उन्हें नई फंडिंग न्यूज़ और उन्हें नहीं मिल रही या देखने को मिल रही है, उनके शर्मा जी या वर्मा जी नहीं आ रहे कि भाई पापा ने फंड रेज या बेटे ने फंड रेज किया नहीं किया. बट देन IIT, right? Why don't you share your story and your background, then we'll come back to because disclaimer, I know a bit about you guys, तो मेरे वो as a podcast वो curiosity खत्म हो रही है कि तो पता है ना नई चीज़ बताओ, but then audience के लिए नया है, तो would love to have your story and journey, and then ठीक है, so I'll start. So hi everyone, Janish. Ankit and I, we started in 2015, Gandhi started in 2015. उसके पहले I was working for Capital One, so just going backwards. So Capital One एक US में बैंक है, अब kind of top 10 है, काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे हमारा रोल था to use mathematics, statistics, statistical modeling, predictive modeling to increase the profitability of the small business bank portfolio. तो small businesses को कैसे लोन देना है, कौन सा लोन देना है, उसकी पॉलिसी, उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, ये सब बनाना इम्प्लीमेंट करना. तो 5 साल वहाँ किया, जिसमें से 3 उनके हेडक्वार्टर्स में जो कि DC के पास है,
और 2 बैंगलोर में। उसके पहले एक साल प्रोजेक्ट कब की बात? 2013-14? ये हो गया आपका 2010 to 15। 10। सो 12 to 15 यूएस में था, 10 to 12 बैंगलोर में था। उसके पहले एक साल जीएस एसोसिएट्स, उसके पहले कॉलेज वाज आईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड कॉलेज के पहले विच रिलेट्स टू द ज्ञानधन जर्नी इज मैं सुपर 30 करके जो फिलांथ्रोपी है, Movie आई वाज अ है। बेनिफिशियरी। हाँ, इट वाज मूवी एज वेल, सो आई एम अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट। सो 2005 में, सो आई कम फ्रॉम लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, पटना इज करंटली होम, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। तो पैसे काफ़ी कम थे घर वालों के पास, couldn't afford कोचिंग। सो दोस्तों ने सुना कि भाई सुपर 30, मतलब उस समय अवेयरनेस बहुत कम थी, तो लाइक तो 9th में आके पता चला कि आईआईटी भी होता है 9th 10th में। मैं तो बहुत बाकी- जल्दी है भाई। हाँ। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा 10th में लगेगा। पता चला 10th में जब उसके बाद दोस्त ने फंडा दिया कि भाई जब इंटरमीडिएट करोगे तो इंटर में ले लो, बिहार बोर्ड में ले लो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो मैं बिहार बोर्ड में एडमिशन लिया बीएन कॉलेज में 11th-12th करने के लिए, और साथ ही साथ फिर कुछ और दोस्तों ने बोला कि देखो ये आनंद कुमार हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ पे किया एंड लकीली गॉट सिलेक्टेड, तो गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सुपर 30, बट ऑब्वियसली फिलांथ्रोपी कांट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो वहाँ से एक थोड़ा मोटिवेशन भी आया था व्हेन वी वर स्टार्टिंग ज्ञानधन। तो एक्चुअली बैक इन कैपिटल वन 5 साल हो गए थे, तो मिडिल क्लास फैमिली, चैरिटी साथ एट होम, राइट। सो पहले घर की चीज़ें सेट हो गई। सो पापा मम्मी के लिए घर हो गया, बहन है छोटी, उसकी एजुकेशन का तब सेट हो यूएस गया। में पढ़ने गए थे? नहीं, यूएस में मैं इंडिया में पढ़ाई करी, अच्छा, फिर कैपिटल वन के बाद 2 साल गए। उन्होंने खींच लिया वहाँ पे 3 ठीक साल। है। तो एंड यू वेंट इन डीसी? आई वाज क्लोज टू डीसी, मैकलीन वर्जीनिया, जो ऑलमोस्ट डीसी का हुआ है, राइट। नोएडा है डीसी का, NCR एनसीआर है। हाँ, थैंक यू। अब ऑलमोस्ट नोएडा आपने ऐसे बोला है कि चलो कोई बात नहीं। दिल्ली का मैं नोएडा का बिग वाउचर, मेरी लैंडमार्क बहुत है मेरी। तो मैं नोएडा इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ एनसीआर, मतलब इट इज द मोस्ट प्लान्ड हाँ, एंड द आपने बेस्ट। स्विच कर लिया तब से। नहीं नहीं, हम भी ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे हमारा ऑफिस यहाँ पे ये भूल गए थे, exactly। employee को track करना है। हाँ। नहीं, it's not same for McLean, Virginia. Actually, McLean is actually the better part of Washington DC. DC relatively poorly managed. Anyway, Right. digression. So हाँ, तो जब घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई, तो फिर दिमाग वहाँ जाने लगा कि यार मतलब जिंदगी में कर क्या रहे हैं, 5 साल पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया, बट क्या करेंगे, मतलब व्हाट विल बी द लेगेसी, व्हाट विल आई लुक बैक ऑन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर वो सुपर 30 का एक्सपीरियंस हमेशा था ही, एंड तो फिर वहाँ से आया कि यार यही करना था। तो फिर कुछ सोच रहा था, बी स्कूल में अप्लाई करने लगा, गॉट अ फ्यू बी स्कूल एडमिट्स। बी स्कूल क्यों? कि भाई वहाँ से कुछ लॉन्च पैड मिलेगा, कोई को फाउंडर था नहीं उस समय दिमाग। तो अंकित वॉज माई मैनेजर एट कैपिटल वन व्हेन वी स्टार्टेड। तो इन ये MBA अपना करने गए हुए थे 2013 में छोड़ के। Then he came back and he said कि I have faced this problem of education loans also, and मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टार्ट करने का, तो तुझे करना है क्या? We kept in touch. तो he came back to DC for one of his, I think your internship का part of your internship और travel. तो वहाँ पे we got connected again, फिर वहाँ पे बातें करी, अच्छा सही में ऐसा है। फिर मैंने कहा छोड़ो MBA, एडमिट वगैरह आ गए थे कुछ, छोड़, पैसे हैं वहाँ लगाने से अच्छा यहाँ। We ended up starting ज्ञानधन। Actually 2 महीने की छुट्टी लेके, and very thankful to my bosses at Capital One, they let me come back to India on a sabbatical to assess whether this idea was useful or had potential back then. Very supportive. तो 2013 15 हाँ, तो वापस आया यहाँ पे, कुछ इंडस्ट्री के बड़े लोगों से बातें करी, तो पता चला कि काफ़ी लोग, एक्सिस बैंक में एक हैं जयराम, जो अब पिरामल के CEO हैं, पिरामल कैपिटल, उनसे बात करी थी। और कैपिटल और SBI में उस समय जनरल मैनेजर वगैरह थे, दीपांकर पुरकायस था, सर। तो उनसे बातें करी थी। तो कुछ अच्छे लेंडर्स में हमने बातें करी, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब लोग, काफ़ी लोग सोच रहे हैं एजुकेशन लोन में करना चाहिए। अभी तक एजुकेशन लोन की हिस्ट्री, नाम बहुत ख़राब था, NPA बहुत हाई था, एंड पूरी कहानियाँ उसके पे क्यों है, तो इंडस्ट्री भागती थी, तो नीड तो बहुत थी। मतलब क्रेडिला वॉज द ओनली रिस्पेक्टेड प्लेयर इवन देन, जो बड़ा हो गया, 7-8 साल से चल रहा है, 2015 में भी हो गया था टाइम, या 9 साल हो गए, 2006 से चल रहा है। सो दे वर देयर, बट उसके अलावा कोई किसी प्लेयर ने बढ़िया लोन की बुक नहीं बनाई थी एजुकेशन। तो बट पीपल वर थिंकिंग, तो वी थॉट कि हाँ ठीक है, सीम्स लाइक गुड इनफ टाइम टू कम बैक एंड स्टार्टेड, तो फिर छोड़ के
तो 2015 तो 2010 से 12 से 13 अंकित की क्या अब कैसे भी तो समझ आ गया कि मैनेजर बट कैपिटल वन में together at Capital One. एंड वेयर यू फ्रॉम So I was born and brought up in Bhagalpur. बिहार भी बताया आपने हाँ, right. तो 10th तक वहाँ पे था. उसके बाद फिर 11th 12th दिल्ली. भगलपुर का हुआ ये भी पटना में बिहार ही हुआ ना बिहार. यार मैं बिहार नहीं गया कभी मैं एक पाकिस्तान गया बिहार नहीं गया और भी बहुत जगह नहीं गया पर बिहार भी जाना पाकिस्तान भी जाना आई एम नॉट कंपेयरिंग टू एट ऑल आप आ जाओ आपको भागलपुर में अच्छा सिल्क मिल जाएगा और आपको फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स मिल जाएंगी. So you can come to Bhagalpur for those two things. Very nice. There are other reasons as well why it is famous, but वाई गंगाजल मूवी वो ज्यादातर लोगों को पता होता है, but भागलपुर सिल्क इज वेरी फेमस. याद आ गया भागलपुर इस सिल्क बार भी मेरा ना एक देता गाय मेरू पर्वत. सारी सारी Meru Parvat is there, which is अच्छा important for an मेरे तो भाई यही है मुझे कुछ समझना होता है समझा देता मेरा विकिपीडिया है जैनियों का भी एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे है. इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट शिखर तो धवन। भागलपुर से आपने 10th करी हाँ, सो भागलपुर से 10th की, उसके बाद मूव टू दिल्ली 11th 12th डीपीएस. पर वाई अच्छा वही वाला खेल की So basically, point is कि like हम लोग का स्कूल 10th तक ही था उस समय तक. And I was in St. Joseph's School. It was set up in 95. I graduated in 2001. मतलब वो एक ट्रेडिशन था कि भाई अगर आप टॉप कर रहे हो तो आपको अब दिल्ली जाके 11th 12th करनी है. आर के पुरम से फिगर आउट करना लाइफ में करना क्या है. तो आप उनमें से हो वो एक जो बैच होता है डीपीएस आर के पुरम में ना वो ए बैच या एक हाँ एबिलिटी सेक्शन होता है ना हाँ, मजा आएगा फिर तो ठीक है so yeah, so I came to DPS. 2 साल DPS में रहे हॉस्टल में. I think some of my best memories from the hostel life. पहली बार हॉस्टल लाइफ थी and it was superior to anything else. So 2 साल वहाँ पे रहे. So you come from a at least financially strong background. So my family has been in a business background है. हाँ. I mean well off is all relative हाँ terms. ठीक है हाँ Right, but मैंने कोई financially strong बोला but it's like okay, हाँ And we guess- my parents allowed for provided me with whatever. Same business? Huh? Same business? हाँ, the cloth. Nice. Cloth. तो 2 साल DPS के बाद फिर IIT क्योंकि ठीक है clear एबिलिटी हो बैच के गया. थे हाँ क्योंकि एबिलिटी बैच के थे तो अगर आईटी नहीं जाओगे तो फेल हो गए हाँ मतलब एटलीस्ट एक्चुअली मेरे को नहीं करना था. मैं एक्चुअली प्रोफेसर से पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए, बट आइडिया नहीं था. तो ठीक है रैंक आ गई है तो चल लेते हैं, आईटी चले जाते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी, पता था कानपुर में जाना है. दैट वाज माय प्रायोरिटी अगेन. तो बिकॉज आई हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट कानपुर. तो मैकेनिकल बेस्ट मिल रही थी, बीटेक ले ली भाई. अब जब ली उसके बाद पता चला कि मैकेनिकल का मतलब क्या होता है. ये तो गलती कर दी है जी, चलो 4 साल कर लेते हैं इंजीनियरिंग. उसके बाद डिसाइड किया कि मतलब काम पढ़ाई तो नहीं करनी मेरे को आगे, तो काम करना है. एंड वाज लकी इनफ कि मेरे को जॉब मिल गई डे जीरो की, कैपिटल वन की. एंड उस समय कैपिटल वन यूज्ड टू कम टू कैंपसेस टू रिक्रूट फॉर यूएस. आई वाज वेरी हैप्पी कि अब सीधे से यूएस में बैठ के आराम से बास्केटबॉल मैच देखेंगे, लाइफ में और कुछ करना नहीं है, सेट है लाइफ. couldn't get our visas in time क्योंकि वो वीज़ा लॉटरी खत्म हो गई थी. कैपिटल वन वाज अ ग्रेट कंपनी. दे एंडेड अप उस साल दे एंडेड अप रिक्रूटिंग 7 folks फ्रॉम डिफरेंट IITs. दे सेड कि अब हम ऑफिस खोल रहे हैं बैंगलोर में. सो माय प्रीवियस बैच में देयर folks they had recruited. उनको 1 साल घर पे बैठ के सैलरी मिल रही थी. एंड लेटर दे वर डॉलर्स में हाँ लेटर दे वर मूव टू यूके एंड स्टफ. हमारे लिए उन्होंने फाइनली बैंगलोर ऑफिस खोल दिया. तो एंड दैट्स वेयर आई मेट रोहित बंसल एज वेल from Snapdeal. He was actually the senior batch, so he actually probably got some incubation idea during that 1 year probably. but हाँ मतलब I think 3 साल then I spent at Bangalore office and then moved to US, वहीं McLean office 2010 to 2013. तो 6 साल कैपिटल में काम किया स्मॉल बिजनेस लेंडिंग टीम में ही. रियली मैनेजिंग दैट बुक. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. बट आई थिंक 5 साल मतलब आई थिंक 4.5-5 साल के बाद मेरा हो चुका था. आई वाज लाइक आई एम डन विद फाइनेंस. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. एंड बिकॉज मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ माय लर्निंग्स जितनी भी अच्छी लर्निंग्स हुई थी मेरे को अपार्ट फ्रॉम टीचर्स आई थिंक स्पोर्ट्स फील्ड में मिली थी. तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स. तो आई थिंक उस समय आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इंडिया वापस जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स का करते हैं. काफ़ी लोगों से बात हुई, यहाँ पे कुछ फाउंडर्स से भी बात हुई थी. मैं मिस कर गया इंडिया पे जाते आप गए थे. मैं 3 साल बैंगलोर में था, उसके बाद उसके 3 साल बाद यूएस पे था. ठीक है मैं मिस कर गया तो 2010 to 2013 यूएस में था. 2012 के आसपास आई वाज लाइक कि अब कर लेते हैं. ठीक है तो आई मीन आई थिंक
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टॉक टू अ फ्यू फोक्स एंड देन फिगर आउट कि ऐसे करते हैं, यूरोप चलता है, यूरोप में सेटअप अच्छा है स्पोर्ट्स का, आई लर्न दैट, आई गेट सम मोर एक्सपीरियंस एंड देन आई मूव बैक। तो यूरोप में एडमिशन ले लिया एमबीए बी स्कूल में, IESE बी स्कूल इन बार्सिलोना। So ESA is quite famous for, मतलब there are a few types they have, प्रोफेसर से डिस्कशन हुई थी तो आई न्यू कि वो सेटअप होगा, तो आई वेंट विद अ क्लियर माइंडसेट कि मेरे को स्पोर्ट्स में करना है। अब एडमिशन हो गया, उसके बाद देखा कि लोगों को प्रॉब्लम मिल रही है लोन लेने में, लोग ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे हैं, हमने लेंडिंग कर रखी है तो हमें तो लगा कि भाई आसान होगा, और हमने भी अप्लाई किया था लोन के लिए। तो लकीली अगेन द लोकल बैंक स्टॉप गिविंग आउट लोन्स, I got my loan somehow from that same Spanish bank, but all the other folks were not। पर आपने वहाँ से लिया था लोन? हाँ, सब हम so टॉप बी स्कूल्स में टिपिकली होता यही था तब कि लोकल बैंक से आपको लोन मिल जाता है, Yeah, जो even भी, today. चाहे यूएस का बैंक हो चाहे स्पेन का But बैंक इंडिया हो। से नहीं मिलता उस समय इंटरनेशनल के लिए, but there was, as you mentioned, Cadila was there, हाँ, so I think but so that is for me the genesis of Gyat, that started from that, क्योंकि लोन मिल ही नहीं रहा था, राइट। मेरे सीनियर बैच में जैसे क्रेडिला से 2-3 लोगों को लोन मिला था, वो भी मिला था 20 लाख का लोन 20 या लाख। 25 लाख का लोन आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर्टी वर्थ 70 लाख। लाइक मतलब सेंस ही नहीं बनता। एक तो कोलैटरल था, दूसरा प्रॉब्लम को यूएस को या मोर And- ट्रेडिशनल US STEM masters and वो भी limited exposure limited to 30 lakhs. उस समय मेजरली विद कोलेट्रल ही होता था। Yeah. एंड आप 1 करोड़ की डिग्री कर रहे हो, मतलब रहना खिलाना मिला से कुछ मिला के क्या हुआ 20 30 लाख लाख? से क्या ही होने वाला है, राइट। right? So I think I started figuring out, talking to a few lenders here, couldn't get the answer, तो फिर वो एक तरह से कीड़ा बैठ गया था। फिर ऐसे ही किसी क्लासरूम में जब इकोनॉमिक्स क्लास हो रही है, किसी में कोई डिस्कस कर रहा है कि ये सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे, तो वन डे इज लाइक मतलब आई वाज स्टिल प्लानिंग ऑन माय स्पोर्ट्स थिंग, तो फर्स्ट ईयर एक्चुअली वर्कड एक्सटेंसिवली, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आई थिंक ये आइडिया मेरा सेट हो गया था, टॉकिंग टू प्रोफेसर्स एंड स्टाफ, बिकॉज़ ऐसे कि अगर कर लेते हैं, बिकॉज़ इट्स अ बिगिनर प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में, थोड़ा आइडिया है एटलीस्ट, तो लेट्स ट्राई, इफ वी कैन मेक अ चेंज देन ग्रेट, नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट देखिए ठीक है। So I started working with a startup based out of Latin America in my second year, जो इसी सेगमेंट में थी। उनके साथ 6-8 महीने काम किया, and then I told them कि हाँ मैं खुद का करने वाला हूँ, तो I'll take a break now, and that pretty much around that time is when I बात चल रही थी, वी वर इन टच। pretty much around that time I reached out to Jainesh, because I was like कि मैं अकेले तो नहीं, मेरी औकात नहीं है भाई काम करने की। ऐसे बात पता तो थी, हाँ? ये हो गया था कि अकेले नहीं स्टार्ट करना। नहीं, so I think because I started thinking about the sports thing, and then ज्ञान का स्टार्ट करना शुरू किया था, तो आई रिमेंबर मैं अपने रूम में बैठ के बोर्ड्स पे कुछ कर रहा हूँ, बट मतलब वो एको चेम्बर वाला था ना, so point ये है कि मेरे को अकेले कुछ एंड मैं अपने ही लाला लैंड में रहूंगा। आई न्यू कि आई नीडेड समवन एल्स एज वेल हु विल बी गुड इनफ टू काइंड ऑफ शो मी द मिरर, राइट। तो वो मेरे को रियलाइजेशन थी, तो वो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सेकंड ईयर में स्कोप आउट कर भी रहा था लोगों को, राइट। एंड आई न्यू जैनेश का, तो इसलिए आई रीच आउट टू जैनेश, आई न्यू कि हाँ अकेले हो सकता है, लोग करते हैं, बट आई एम नॉट गुड। हाँ, same. I guess another similarity, I'm very clear, you know, and if I have respect, अगर मेरा भगवान और फाउंडर आएगा, भगवान की रिस्पेक्ट करो पहले, और फाउंडर और अकेला फाउंडर और 2 फाउंडर में आएगा तो अकेले की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा। So then what were your traits you were looking for each other कि भाई why Jainesh, because आप औरों को भी फिगर आउट कर रहे होगे। Yeah, so I think that is an interesting thing, because a lot of times वो VCs या investors कहेंगे कि भाई complementarity और skill sets क्या है। Frankly speaking मेरे को उतना मतलब there are certain things which I believe in, like क्योंकि अगर background देखें तो both of us from IIT, mechanical engineering, he has a much higher CPA than me, that's a different thing, but मतलब he's the smarter one, but तो background same है, Capital One में भी है, same team में ही है, तो I think as known devil is better than unknown devil, कुछ known devil is better than unknown devil। so एक तो वो था, प्लस दूसरा frankly speaking at least functionally अगर सेम है, मैं फाउंडेशनली सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टू सर्टेन थिंग्स, मेंटालिटी या अप्रोच टू पीपल, टीम मैनेजमेंट, आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट कि एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, राइट। ही इज वे डिफरेंट देन मी इन मल्टीपल अदर थिंग्स, राइट। आई विल नॉट बी a certain kind of a person, so I think that is the reason why I was very clear when I had reached out to him as well. So it was obviously because उसका interest था in the, and I knew his motivation and passion, and I go back to, I think one of my I remember एक college में we were doing some pitch and some essay contest, and the VC started saying कि आपका idea बहुत अच्छा है, we ready to fund it, and I went back to my professor and said कि यार ठीक है, मैं स्पोर्ट्स का सोच रहा था, मतलब कर तो रहा हूँ और इंटरेस्टेड भी हूँ, बट ये तो अभी पैसा देने को तैयार है, तो कर लेते हैं ये पैरेलली साथ में। I think my founder told me my professor told me one thing कि यार तू कर ले, को करना है, but मतलब
just think about it, because he was also an ex-founder. He had also set up his own thing. He said कि मतलब your low days will be way more than your high days. This is the highest high you will get. इसके बाद low days ही है. जिस दिन low day होगा ना, उस दिन तू ये काम करेगा. Right? अगर नहीं करेगा तो अभी सोच. Because low days will come and you will not be able to get out of it. राइट, बट आपने फिगर आउट करता है कि वो जो ड्राइव है जेन्युइन है, क्योंकि कभी भी तो एटलीस्ट नॉट इंटेंशनली एट टाइम तो हम अपने को बना के बैठो ना कि यार मुझे तो अकाउंट्स ऑनर्स करना है, क्यों मेरे मार्क्स आ गए, फिर पता चला सेकंड में भाई अच्छा तो बनी, अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, एमए तो दूर की बात है, अच्छा ही नहीं कर पाऊंगा ना, कोई कहना कि भाई कुछ NCFM करो या सर्टिफिकेशन करो, जॉब नहीं मिलेगी। और वो भी मेरा स्टूडेंट इंटरेस्ट था कि यार किसी एक फ्रेंड के पापा को देखता था घर पे बैठते थे AC और अपना ट्रेडिंग करते रहते थे, तो पता चला कि अच्छा NSC सर्टिफिकेशन कर दोगे तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में जॉब मिल जाएगी। एंड देन मेरा वो इंटरेस्ट भी सूडो इंटरेस्ट था, कहने में अच्छा लगता था भाई स्टॉक मार्केट में MBA करूँगा, कैपिटल मार्केट में कुछ करूँगा, तो मोर ऑफ सूडो एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, और दिस इज ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज एक हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं ना जहाँ पे एक और क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, बट एटलीस्ट आपके मॉम डैड आपका एनवायरनमेंट इकोसिस्टम ये था कि भाई 10th में अच्छे नंबर आया तो RK भेजना है विद डिफाइन दैट कॉम्पिटिटिवनेस, एबिलिटी बैच, सबको IIT जाना है वहाँ पे, तो एक वो डिफाइन हो गया राइट। अब आपको खुद नहीं पता, एटलीस्ट अपनी पता, उसमें नहीं पता था कि IT करना ही नहीं करना, या फिर क्या करेगा IT करके, या फिर मैकेनिकल गया राइट, बट IT हो गया, मैकेनिकल हो गया, अब IIT कानपुर हो गया, अब IIT कानपुर में US जाते हैं या फिर स्टार्टअप करते हैं तो फ्लो में है ना, मतलब वो सोसाइटी बता रही है कि भाई ये है प्ले बुक तो कभी क्वेश्चन किया कि यार ये तो मुझे करनी था, मुझे स्पोर्ट्स करना था। So I think बात ये कि IIT में ही मेरे को जो मैंने कहा कि मैंने IIT के बाद क्लियर किया था कि मेरे को और पढ़ाई नहीं करनी, आई थिंक वो रियलाइजेशन IIT में एटलीस्ट 4 साल हो गई थी कि अब जो करना है खुद से सोच के करना है। हाँ राइट, तो मैंने फाइनली MBA तो की राइट, बट दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस एंड मतलब जेनेश माइट नो दैट एज वेल। आई थिंक 2011 तक प्रॉब्ली आई वाज नॉट टेलिंग एनीवन कि मेरे को किसी को भी कोई मुझसे पूछता था MBA करनी चाहिए, आई लाइक क्यों करोगे भाई, आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को करना नहीं है। तो आई थिंक वो मेरा लकीली माइंडसेट बहुत पहले शिफ्ट हो चुका था कि लाइक टू हेल विद व्हाट द नॉर्मल कल्चर इज, अ नॉर्मल सेटअप इज। आई वाज कंफर्टेबल इन माय स्किल। और वो इसलिए हो ना कि आपने IT क्रैक कर लिया तो आपको पता है कि अब कुछ भी हो जाएगा तो मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी, मेरे सिक्योर तो हो ही गया राइट। तो मुझे मेरे माँ बाप ने बोला तुझे RK भेजा था, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई यार मैंने IT क्रैक किया है, वैलिडेशन जिस जहाँ से हम आते हैं वहाँ IT के नाम पे शादी भी हो जाएगी, IT नाम पे एक एटलीस्ट एक बेस बन गया। उसके बाद देन यू बिकम ना, जैसे अभी आपने कुछ बोला था कि अब मेरा पेट भर गया ना, अब मैं बोलूँगा कि यार जब कैपिटल 1 गए, आपने अपना घर वर सेट किया, अब पेट भर गया, देन यू फील कि यार अब मैं आत्मा के लिए या इंटरेक्ट के लिए क्या करूँ। स्पोर्ट्स के लिए जब सोचा तो इट वाज फोकस कि मुझे बाहर ही करना है कि इंडिया के लिए करना है? इट वाज फॉर इंडिया, सो इट्स वेरी क्लियर कि मेरे को इंडिया, इसलिए मैंने कहा कि मैं आई वाज प्लानिंग टू मूव बैक टू इंडिया एंड देन इसलिए मैं उस समय फाउंडर्स जो एक दो फाउंडर्स थे जो इंडिया में स्पोर्ट्स का काम कर रहे थे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली इज करेंटली डूइंग सम थिंग अराउंड फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 10 years, सो आई हैड डिस्कस्ड विद अ लॉट ऑफ फोक्स। वो करना था इन स्मॉल वर्ड सिंपल वर्ड्स की, मतलब आप समझ लो sports academy with analytical approach in India for wholesome growth. So that is what I wanted to do. But हाँ मतलब I was very clear कि इंडिया में वो स्वदेश मूवमेंट की कुछ और क्योंकि मुझे लगता है Tier 2 Tier 3 से आते हैं और Tier 1 Tier 2 3 कहीं ना कहीं वो एक बिकॉज एक और थीम है। I believe now I say that country is a flawed concept. Right, we are all global citizen, right, and due to which we have an edge, we have privilege. Now हम आके बोल सकते हैं, और फिर नरेटिव भी है। The other day I was doing something and they were like India ना, खुद की सिटीजनशिप आपने UK की ली हुई है और आप इंडिया कर रहे हो, ठीक है नरेटिव है whatever, बट तो ये कहाँ से था इंडिया वाला नेस, स्वदेश मूवमेंट या इंडिया के लिए करना है? नहीं, so I wouldn't say कि मेरे को स्वदेश मूवमेंट था, बट आई थिंक अगेन लाइक आई से कि आप अगर आप आज की डेट में भी देख लो तो आई थिंक देयर इजंट रियली अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर प्रॉपर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड राइट। आई वाज लकी, मतलब हमने कॉलेज में भी खेला है एंड लाइक आई सेड कि मेरे को बहुत लर्निंग्स हुई है ऑन द स्पोर्ट्स राइट। सो वो जो लर्निंग है राइट कि मतलब आई कैन अब्यूज यू एनी व्हिच वेज राइट, आई विल टेल यू कि यू आर नॉट पुटिंग अप विद योर एक्ट, बट द मोमेंट आई स्टेप आउट एंड नाउ वी आर ऑन द ग्राउंड, We are team. राइट। तो आई थिंक वो जो लर्निंग है वो मेरे को वहां पे मिली
एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि वो जो लर्निंग होती है टीम स्पोर्ट्स की, वो अगर प्रॉपर होलिस्टिक ग्रोथ हो, हाँ वो होनी चाहिए. आई गेस आप लोगों को अभी फंड रेजिंग करा हुई है, Right. तो मेरे शो में आने के लिए फंड रेजिंग करनी पड़ी. मैंने किसी ने बोला है कपिल शो वाला करूंगा. इसलिए बुलाया कि fundraise इसलिए. नहीं नहीं, यार, फंड्रेज के बारे में नोटिस नहीं किया था सारा. नहीं एक मिनट देखो हम कैमरे में बात कर सकते हैं. अंकित के पीछे तो मैं 2-3 बार लगा कि भाई कुछ मिलके कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, बिकॉज वो डीएनए वाले लोग क्या करते हैं, बूस्टर वाले लोग थक 1 से 2 उनका 2 से 4 6 कर लेते हैं. तो हमने करेंगे, डिस्कस करेंगे, कैमरा में भी करेंगे, बट बिकॉज आई फर्मली बिलीव व्हेन सी एट द डे एंड द आई मीन आई गेस देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, बिकॉज एक तो हम compete नहीं करते, व्हाटएवर Yeah. सेड एंड द डीएनए सेम है. मैं बहुत बार आप लोगों को वो देता हूँ, एबी को एंड मयंक को भी, कि यार या तो इनके हमारे कोई मोल है कि साला जो सोच रहे हो वहाँ पे भी कर रहे हैं, और या वो तुम जो सोचो हम भी कर रहे हैं. मतलब ये जो एजेंट पोर्टल डाला, Right. आई गेस हमने 4 साल मैंने पहले इन्हें बोला था यार ऐसा कुछ बनाते हैं, मुझे बीडी अपना डेवलप करना है, फनल है, और यूनी एजेंट्स को देखा हुआ था, Yeah. राइट, और उसमें मेरा ट्रैफिक भी आता ही है, राइट, एंड देन आपने किया, मैंने बढ़िया है, एंड देन वी हैव बिल्ड दैट यूनिट कनेक्ट, वी कैन डिस्कस दैट. सो फंड रेज हुआ, राइट, और हमने भी फंड रेज किया हुआ है, राइट, और आई बिलीव जिस आप मॉडल में हो वहाँ फंड रेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मेन, कैन आई से इट्स अ मेन नॉट ओनली रॉ मटेरियल बट ऑल्सो एन एज एंड मोट. Yeah, absolutely. So, Rom, Okay, NBFC. I will differ. Yeah. I will Acha. differ here. या Because मतलब it is a moat if there are many more zeros after. हाँ Because, हाँ, because the at difference, the scale, because the yeah. difference is कि मतलब वो राइट, मतलब कैपिटल इज द मेन, moat या is a या concept makes only sense जब वो it's a massive when deep capital. pockets हाँ, है, मतलब very deep because- pockets है. because अगर आप लेंडिंग कर रहे हो आज की डेट में और आप कह रहे हो कि मैंने $50 million का फंड रेज कर दिया है, frankly speaking, $50 million is probably what a small unit of an HDFC would be disbursing Right. in a month or in a week or in a day. राइट. Right. तो मतलब point is कि मतलब it is not necessarily a moat. Yeah. Right. It can differentiate and probably I won't say that we have not been discussing about education loan करेगा, ये DNA same है, funnel बनाना same है, digital, physical and not. So we've been thinking, when we realize कि यार one of the main reason कि यार ये तो already बहुत सारे हैं और हम करेंगे तो अच्छा कर लेंगे, बस तो नहीं करेंगे, right? And then again same thing, अपना DNA भी वही है फोकस कि यार एक चीज़ मिल गई है, पोस्ट एडमिशन मिल गया है, we believe in more in collaboration than competition. मतलब ये DNA मेरा DNA है, right? And मयंक also compliment and support कि या तो बेस्ट करो या मत करो, Yeah. right? So due to which whenever we always be talking about working, we already working in any which ways, right? Yep. But वो स्केल नहीं हो रही थी चीज़ें, या तो हमें हो रहा था कि यार हम कर तो रहे पर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, और आपको भी हम 2-3 बार मिले कि यार आप भी करो यार, कुछ तो करो, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, बट अब चीज़ें आगे तो Correct. बिलीव आ गया, Yeah. मिल लिए, बिलीव आ गया, राइट. बट फंड रेज होने से इज्जत दिखी आंखों में, क्योंकि मैं भी बूटस्ट्रैप हूँ ना, और बहुत ही कम रेज किया है फंड, राइट. तो और हम है अलाइट सर्विस फॉर लॉट्स ऑफ OGs एंड बिग पीपल वो लाइक 200-500 बच्चे करते हैं, हम 10-15 करोड़ का रेवेन्यू है, OG एंड वट एवर, एंड देन ओ यार एकोमोडेशन तो सिम कार्ड वाला काम है, एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग बिकॉज मेरे पास सिम कार्ड वाला को याद है, मैंने कहा यार अंकित तू देख लेना, राइट. वो अलग बात है, वो सिम कार्ड वाला प्रॉब्ली उसकी कंपनी की वैल्यूएशन रेवेन्यू वगैरह हम सबसे बहुत बड़ा है, Yeah. बिकॉज मेरा आरपू कम है, तो आई ऑल्सो एंड सेम थिंग हैपन विद मी, कि यार जब भी हम कह जाते हैं कि हाँ यार इंपॉर्टेंट तो है यार, $500-150 वैसे $2000 अंकित तू मिल ले, तो तुम्हारे में ऐसे कभी नहीं आया होता है? मैं पहले स्टैब ले लेता हूँ उसमें, बिकॉज आई थिंक जो पॉइंट यू रेज्ड अराउंड कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, आई थिंक दैट इज एट द वेरी कोर ऑफ दिस, राइट. कि मतलब एंड वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम बाय एंड लार्ज, एटलीस्ट मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक दैट इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द यूएस एंड द इंडियन इकोसिस्टम. इंडियन इकोसिस्टम में एवरीवन वांट्स टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन देयर ओन, हाँ, राइट. एंड दैट इज द क्योंकि पैसा वही मिलता है ना, इन्वेस्टर, एंड द पिच इज दैट वी हैव यूएस में एवरीवन जस्ट सेज कि मैं बस ये कप बनाऊंगा, और नीच Right. में लेकिन आप यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे बोलेगा मैं कप भी बनाऊंगा, टेबल भी बनाऊंगा, पोस्टर भी बनाऊंगा, और मैं फोन भी बनाने लगा हूँ, राइट. तो दैट इज द डिफरेंस. Right. अगेन
फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मार्केट प्लेस की बात मतलब हमारे जो फंड रेजिंग की बात कर रहे हो कैपिटल एज अ मोड की बात कर रहे हो I mean we started as a marketplace and we are still a marketplace and we want to continue being a marketplace for loans right because हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है to say कि ओ लेंडर ए बी को काम नहीं करना होता बात ये है कि अगर 100 कस्टमर्स हैं if we can figure out a way कि हम 80 कस्टमर्स को बेटर डील दे सकते हैं थ्रू द इकोसिस्टम why not make that the better why not have the customer at जो यूजर है उसका उसको क्या चाहिए उसके लिए क्या बेस्ट है rather than saying कि अब ओके ओके मेरी एनबीएफसी ज्ञानधन एनबीएफसी हो गई है तो कल तक मैं बोल रहा था कि मार्केट प्लेस इज ग्रेट और अब अचानक से मैं आज सुबह उठ के बोलने लगा कि नहीं ज्ञानधन की एनबीएफसी का जो लोन है वही बेस्ट लोन है तो इसमें क्या लॉजिक है इसमें कोई लॉजिक नहीं है राइट या तो एक्चुअली बेटर हो दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग राइट बट दैट इज जस्ट नॉट फीजिबल राइट सो प्रैक्टिकल है कि आप फिगर आउट करो इन अ पार्टनरशिप मॉडल विद योर अदर लेंडर्स टू फिगर आउट कि आप स्टूडेंट के लिए कैसे सॉल्व करोगे नाउ ऑब्वियसली सम सेगमेंट्स स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल मतलब लेंडर एबीसी विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि उस स्टूडेंट को कैसे करना है यहाँ प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी तो प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम थ्रू अदर एनबीएफसी करेंगे कि हम तब भी आपके साथ एज अ लेंडर काम कर रहे हैं बट लेट्स पार्टनर एंड मेक इट बेटर एंड सिमिलरली टेकिंग दैट टू द नेक्स्ट स्टेप की जो आप सिम की बात कर रहे हो या कंसल्टेंट मार्केटप्लेस की बात कर रहे हो थिंग इज कि यार मतलब मेरे को क्यों करना है मतलब आज सुबह भी समवन वाज आस्किंग मी कि सो आर यू वन स्टॉप शॉप इनको ये वर्ड बहुत वियर्ड सा वर्ड है मुझे पता क्या बहुत लूजली यूज मतलब डिफाइन करो इसका मतलब क्या है राइट अब पॉइंट ये है कि बात ये है कि आई एम अ कॉन्सियर्ज या आई एम एक तरह से स्टूडेंट का फ्रेंड समझ लो या जो भी है स्टूडेंट कम्स टू मी आई एम डूइंग अ लोन थिंग स्टूडेंट आता है मेरे पास एट मल्टीपल स्टेजेस राइट जब वो डिस्कवरी फेज में है उसको चाहिए कंसल्टेंट करेक्ट उसको चाहिए कि मैं 4 लोगों से बात करूं राइट नाउ आई डोंट वांट टू बिल्ड दैट मसल मैं क्यों बनाऊं राइट सिमिलर टू द थिंग आई वाज सेइंग कि मैं को-फाउंडर हूं आई नो कि मैं इससे नहीं हो पाएगा 2 लोग तो भाई या तो भाई कि हम मिल जाए और 4 और लोग मिल जाए एक और मेगा थिंग बना ले बड़ा इकोसिस्टम सारे यूनिट्स हो बट अदरवाइज वो मतलब आर्बिट्ररी लगता है कि मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा नहीं ऐसा नहीं है मतलब जब है तो आप बेस्ट प्लेयर के साथ सॉल्व करवाओ आई नीड टू बी देयर फॉर स्टूडेंट्स व्हेन दे नीड द हेल्प बट आई डोंट नीड टू बी द प्लेयर सेम मतलब अकोमोडेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी लिविंग मैं क्यों उसमें घुसूं रीइन्वेंट क्यों करूं राइट बट टेम्पटेशन होती है जब एक स्टूडेंट टॉप ऑफ द फनल आ गया एंड यू नो यू हैव द होल्ड ऑफ दैट स्टूडेंट एंड बिकॉज़ एक इस जर्नी में दे बीन यू नो स्पेंड्स एट एवरी यू नो जंक्शन तो टेम्पटेशन होती है कि यार इसको और कैसे मोनेटाइज करें तो ये डिस्कशन काफी बार उठी है राइट और ये इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आता है हमारी इंटरनली भी उठी है हम लोगों का कन्विक्शन हमेशा स्ट्रांग रहा है एंड क्लियर रहा है कि अगर टेम्पटेशन बेसिकली चॉइस है यू कैन ग्रो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली राइट एंड यू पिक वन एंड गो विद दैट राइट सो हॉरिजॉन्टल वाले चॉइस काफी लोगों ने लिया राइट वी हैव मेनी प्लेयर्स इन द इकोसिस्टम जो A to Z करते हैं राइट और बट वर्टिकल हैज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एबल टू सपोर्ट एवरीवन इन द इकोसिस्टम जो हॉरिजॉन्टल होते ही वो खत्म हो जाता है राइट and we believe fundamentally that when it comes to staying impartial as a education loan marketplace अगर हम किसी दूसरे वर्टिकल में खुद घुसते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो impartiality हट जाती है then for instance we talked about जैसे कि admission is one of the biggest grossing Profit pool नहीं है करेक्ट हाँ so admission का revenue अगर मैं admission में घुसता हूँ तो will I send the student to the university जहाँ मुझे maximum commission मिलेगा right that might be negative for the student also will I send the student to a university where they can go which is good but जहाँ loan नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे loan भी कराना है so there's so many conflicts that come up right and obviously when the question or the value proposition of being a horizontal support for everybody a vertical agency doing one thing and therefore being able to support everybody in the ecosystem all the consultants can come to us and they do कि हमारे बच्चे का लोन करा दो the moment we have this we are a competition so there's so many arguments against I it. agree Also to add on, I think what we have become and where we are positioned today, I fundamentally believe that we are the enabler of the ecosystem at this point in time. There are other companies who are competing with the ecosystem. So being an enabler versus competition to the ecosystem, an enabler will always win. Is what I ये इसलिए भी हुआ है कि प्रॉब्लम हमारी जर्नी ऐसे रहेगा मैं अपने भी कह रहा हूँ कि हमने पहले दिन में 100 मिलियन रेज किया हाँ definitely Yeah. definitely एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था कि दैट इज द choice है हमारे पास yeah because
जहाँ तुम 100 मिलियन रेस करते हैं फिर तुम कहोगे सब कुछ सुना हुआ, राइट? एंड ऑनेस्टली आई वोंट से दैट हम नहीं सोचते कि यार एडमिशन देख सकते हैं या लोन देख सकते हैं, बिकॉज एलटीवी बढ़ाना है यार, क्या ऑप्टिमाइज करना है, यू नो, एंड देन स्टूडेंट को वन स्टॉप शॉप, या देखो इसमें मेरिट तो है कि एक स्टूडेंट हमारे पास आया और हम पूरा ऑनेस्ट ले रहे हैं, गाली भी हम खा रहे हैं, मिठाई भी हम खा रहे हैं, राइट? अभी क्या होता है, अच्छा अब बोले कोई नहीं, अच्छा इसी से भेज दिया स्कूल, अच्छा इतने % में लोन हो गया, अरे ऐसे एजुकेशन एकोमोडेशन ये दिलवा दिया, राइट? ऐसे एक्सपीरियंस रहा। और फिर स्टूडेंट की तरफ से एक वो देखो कितना उनका एक्सपीरियंस है यार, 18 टच पॉइंट में पहले असेसमेंट के लिए कहीं जा रहा है, लैंग्वेज के लिए कहीं जा रहा है, काउंसलिंग कहीं जा रहा है, एडमिशन के लिए अलग जा रहा है, वीजा के लिए अलग जा रहा है, लोन के लिए अलग जा रहा है, एकोमोडेशन अलग जा रहा है, उसके बाद रेमिटेंस के अलग जा रहा है। तो फॉर एनी रीजन व्हाट मेक सेंस ना कि यार मैं पेन भी बनाऊँ, बुक भी बनाऊँ, फिर बैग भी बनाऊँ, फिर स्कूल बस भी बनाऊँ, और फिर स्कूल छोड़ूँ और फिर स्कूल भी बनाऊँ, डिपेंड अपॉन 100 मिनट पहले उठा रहे हैं बाद में उठा रहे हैं, यू नो। देन यू नो अगर जो हमारा ये था कि हम लोग हम तो वी जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई गॉन थ्रू द सेम जर्नी, यू नो, बीन माई रूममेट व्हेन ही वेंट टू यू, आई एम लाइक भाई नहीं तेरा मन उठ के चले जाइयो, यू नो, इसने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, बट ही एंड अप स्टेइंग इन अ वेरी वेरी शेडी यू नो विद कपल्स वेयर इन सब कुछ पैसा पहले दे दिया, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच डिनर 5 बजे मिल रहा है, यू नो, इंडियन बॉडी 5 बजे डिनर कैसे खा सकती है, पैसा सारा दिया हुआ है, और मैं ये भी नहीं गाली सुना सकता, ये गाली सुना सकता हूँ कि भाई मैं तो पहले से सब कुछ प्लान किया था, यू नो, तूने बोला प्लान करके जाइयो, बुक करके जाइयो, अब यू नो देन वी स्टार्ट, नहीं यार फिर ना हम ना जो पीबीएस है ना, स्टूडेंट हाउसिंग जो ऑर्गेनाइज है उसी को करेंगे, वी यू नो, हमने कहा अब तो ठीक है, फिर हमने कहा जब फंड रेज करने चलते हैं, या फंड रेज भी क्या किया हमने, तो जब स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी से जब लात पड़ी दोबारा स्टार्ट किया, तो किया भी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट, यू नो, और ये भी इसलिए कहते हैं कम्पीट नहीं करना, कहीं ना कहीं हमारा डीएनए है, मेरा डीएनए है, कोलैबोरेट करते ना, कम्पीट क्यों करना है, डाइल्यूट क्यों करना है, रेस टू बॉटम क्यों होना है, राइट? या कहीं नहीं डर होगा, कुछ तो होगा, राइट? बट व्हेन वी रियलाइज कि यार 2018 तक हमने यू नो पीबीएससी को ऑर्गेनाइज कर लिया यूके में, फिर ऑस्ट्रेलिया में कर लिया, फिर आयरलैंड में कर लिया, एंड देन रियलाइज कि यार अभी भी हम ना प्रीमियम वालों को कर रहे हैं, यू नो, सबसे ज्यादा यही था कि यार ये लाइफस्टाइल बिजनेस तो नहीं है, उसके बाद और हमें ये पता भी नहीं था कि स्टार्टअप करना है, लाइफस्टाइल बिजनेस करना है, ये था कि यार लात पड़ी है, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना है, शादी हो गई है, राइट? किसके पास जा सकते हो, मयंक साथ करेगा, कहता है मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मैंने इतना कमा रहे हैं, मैं चल करते हैं, फिर इकोनॉमिक टाइम पावर वाइड हुआ, 19,000 में वो 600 यू नो मेन शॉर्टलिस्ट हुए, टाइम्स गए पहली बार एज अ 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो वहाँ पे कुछ मेंटर मिल गए, तो लगा यार कुछ तो सही कर रहे हैं, वहाँ पे आपके WMS वाले भी थे, दामनी एंड अर्जुन, यू नो, स्मार्ट पीपल, राइट? अच्छा लगा यार कुछ तो सही कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उससे वो स्टैंड अप इंडिया भी हो गया था मोदी जी, उन्होंने यार कुछ तो सही कर रहे हैं, तो फिर कोवर्किंग में भी आ गए, करते करते फ्लो होते फिर रियलाइज किया अच्छा इसके आगे बढ़ना है तो फंड रेज करने की जरूरत है। अब फंड रेज करने जा रहे हो तो अरे तुम तो एकोमोडेशन बहुत छोटे सेगमेंट हो, अच्छा आपके पहले आपने किया था उन्होंने तो 80 मिलियन भी दिवाला कर दिया, student.com 13 मिलियन तो जो हमने यूनिवर्सिटी में रेज किया हुआ था, तो हम तो बाय डिजाइन एंड बाय फोर्स बोले कि बुस्टरैप भी है, पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, बनाते जाओ। फिर 2018 में थोड़ा बहुत रेज किया, बट अगेन यू नो वी रियलाइज कि यार अब यू नो अगर हमें बड़ा होना है और रियली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टूडेंट की, तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि भाई पीबीएस से भी बुक करो, यू नो यार 50-60% लोग नॉन पीबीएस से जा रहे हैं by price point or by their requirements. Not everyone want to be in a matchbox paying 600 because they want to be in walking. Yeah. You know, and then there are people who don't have money, and there are people who have empty money, and they really need a private apartments and all. Yeah. Then we like, अच्छा, you know, अब पूरा segment बनाएंगे, premium to budgeted, short term to long term, Vegas to Wellington, but इतना करना तो हाउसिंग में लाना बहुत जरूरी है, and then we added value added service. मतलब I think हमने ना वो नहीं कभी सोचा कि यार ये चीज ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, बस Right. we let's try and test it. We were also listening to our students very regularly. तो एयर टिकट्स मतलब हमने काफी करा कि यार क्यों करेगा स्टूडेंट हमारे से, जब एक मेक माई ट्रिप है 500 रुपए भाई, 300-500 हजार में बचते हैं, तो क्यों आएंगे हमारे पास, मतलब व्हाई दे विल डू, बट स्टूडेंट की तरफ से आता था कि यार हमारे लिए प्लीज एयर टिकट्स भी करा दो। अच्छा एयर टिकट्स के बाद हमें अकोमोडेशन कौन ड्रॉप करेगा, सो वी पिक दोस थिंग्स व्हिच एक्चुअली स्टूडेंट आस्क एंड देन यू नो बिल्ड ऑन दैट। और इसके साथ एक वर्जन हमारा भी, मेरा वर्जन है ना,
यार ऐसी चीज करो ना जिसमें पैसा नहीं है, लोग नहीं आएंगे। उसको स्केल कर लो, और कैक तो बन ही रहा था ना, तो फिर एयर टिकट एयरपोर्ट ट्रांसफर हो गया। बट मेरा मेन रीजन ये था कि यार 500-300 हज़ार रुपए ना लोग नहीं आएंगे, लोग पैसे नहीं मांगेंगे, एडी में पैसे दे रहे हैं, 500 पैसे मांग रहे हैं यार। राइट, Interesting, yeah. I think वो hard things about hard things वाले Yeah, बिल्कुल. Yeah. I think frugal experimentation is also very interesting. यार मुझे part. लगता है वो हमें तो पैसे मिले नहीं, क्योंकि मुझे पता ना मिलेगी नहीं। आफ्टर student.com एंड Unirogers वी वर क्लियर कि नहीं मिलेगी। मैं अंबर के साथ सौरभ के साथ बैठा हुआ था, मुझे याद है हम इधर ही कहीं एडमिन में बैठे हुए थे, कहता भाई पैसे तो नहीं मिलेंगे इसमें। मुझे नहीं लगा, मैंने बनाते रहो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे रेज फंड्स एंड रेज विद वेरी गुड इन्वेस्टर्स एंड इट्स आल्सो वैलिडेट, इट्स वेरी बिग मार्केट। एंड उनका भी डीएनए काफी सही है, अच्छे लोग हैं। ऑफ कोर्स पैसे रेज करने के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वही प्रेशर आ जाता है या करना पड़ता है। तो हम लोग बड़े क्लियर थे कि यार हमें एडमिशन में नहीं करना, आप अभी एडमिशन करो, मैं अभी फंड रेज कर लेता हूँ। मेरी टिकट साइज यार मेरा $1,500-$1,800 मेरा LTV हो जाता है, राइट। बट मुझे पता है कि वो करते ही वी कम्पीट विद ऑल द एजुकेशन पार्टनर वी वर्किंग विद एंड द वे वी स्टार्ट कम्पीटिंग, फिर मुझे और पैसा रेज करना है, फिर तो वो तो साइकिल है, फिर तो तुम बस PL पुश कर रहे हो। I think that is these are important decisions that you have to make early on, because जैसे कहा we had discussed this extensively। मेरे को याद है पहले जब हम शुरू में हम वारंगल गए थे, त्रिची गए थे और कानपुर गए थे, तो मतलब पॉइंट इज लाइक स्टूडेंट्स सबसे पहले यही बोले थे अच्छा ठीक है आप लोन के बारे में बता तो रहे हो कि आप ये कर दोगे बट एडमिशन बताओ पहले हमें। राइट, गुड पॉइंट। Everyone was saying that and we कहने को कोई कह सकता है कि why aren't you listening to your customers, right, but the point is कि वो फिर you will have a desire to do everything, right, we just said कि let's fix, and to be honest we were also fortunate enough कि हमने भी रेस को कम किया था, but the moment you raise money you haven't। चलिए ऐसे बात बताओ, ये तो जो हम बिजनेस में है ना, हमें अपने B2B पार्टनर्स के लिए ट्रू होना है, बट अगर और बड़ा हो तो मैं बोलता है स्टूडेंट्स फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं तो मुझे पता है कि वो स्टूडेंट इस कंट्री में नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं, एंड दिस इज समथिंग जो हम अपने जो अभी कंसल्टेंट फाइंडर जो हमने लॉन्च किया है एंड वर्सेस जितने भी कंसल्टेंट पार्टनर्स के साथ हम लोग बात करते हैं, तो वी आर नाउ टेलिंग देम अपफ्रंट कि सी लोन इज ए प्रॉक्सी कि अच्छा कॉलेज स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन इज ए लिटिल बिट ऑफ प्रॉक्सी अराउंड कि आप अच्छी जगह पढ़ने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एंड वी कीप टेलिंग ऑल ऑफ आवर एजुकेशन कंसल्टिंग पार्टनर कि यार एंड हमने उनको टूल बना के दिया हुआ है अपफ्रंट एलिजिबिलिटी चेक का, कि आप बच्चे को डे 1 जब यूनिवर्सिटी बता रहे हो उसी पॉइंट पे यू कैन गिव हिम ए प्रॉक्सी ऑन कि लोन होगा नहीं होगा, तो उनके भी टाइम बचता है, वहीं पे सॉल्व होगा। वो वहां पे सॉल्व हो ही नहीं सकता कि आपने इंडिपेंडेंट ऑफ लोन इवैल्यूएशन एडमिशन हो गया एंड उसके बाद वो ड्रॉप हो रहा है। इट हैज टू बी द लोन हैज टू बी बायसनेस नहीं है। अगर उसमें लोन होगा नहीं होगा और वो एजुकेशन काउंसलर है, उसको उस यूनिवर्सिटी के कुछ नंबर करने हैं, राइट, तो दैट मीन्स वो चेक करने के लिए कर लेगा, बट कहीं ना कहीं वो इग्नोर मार देगा। दूसरा आपने बोल दिया कि उसका लोन ही नहीं हुआ और वो फिर जा ही नहीं रहा, तो आपके लिए भी तो मार्केट और श्रिंक हो रही है। लेकिन वही जो डूइंग द राइट थिंग वाली हार्ड थिंग है ये स्टूडेंट के। अगर जो अमन की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरह से आप देखो पूरे इकोसिस्टम में पढ़ाने वाले को यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता है बिकॉज स्टूडेंट देता है, कंसल्टेंट को पैसा मिलता है क्योंकि यूनिवर्सिटी देती है, राइट। एक ही पार्टनर है पूरे इकोसिस्टम में, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी प्लेयर्स हैं काफी एज वी नो। जो एक प्लेयर है जिसका पूरा इंटेंट ये है कि स्टूडेंट को नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वो लोन वाला है, राइट। लोन वाले को सारा पैसा तभी मिलता है जब स्टूडेंट को नौकरी लगती है। आप सब निकल जाओगे, हम और रह जाते वो हैं। भी सबके लिए, हाँ, वो भी ऐसे नहीं है कि ये कोई संत महाराज है, हाँ, इनका NPA हो गया तो सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसलिए बेसिकली लोन वाले का इवैल्यूएशन इज द मोस्ट लाइक एंड इट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व। एग्जैक्टली। आप अगर एडटेक की बात करो कि एडटेक में इतना बोला हुआ लाइक एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल इक्वेट कि भाई लेंडर्स ने गलत कर रहे हैं, ये है, and there are some lenders who done malpractice as well, but frankly speaking भाई incentive alignment की मतलब जो lender अगर किसी edtech के साथ काम करके लोन प्रोवाइड कर रहा है उसका भी इंसेंटिव उसी में अलाइंड है कि आपका एक्चुअली वैल्यूएबल आउटकम होगा। इनफैक्ट अपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बना दो तो ये भी बोलो कि और एक्स फैक्टर, रिलेटिव्स देयर, गर्लफ्रेंड देयर, या फिर वेदर, मतलब आई बीन लाइक वर्च्यू ऑफ आई गेटिंग टू पिक ब्रेन्स ऑफ बेस्ट पार्टनर्स, co-founders, or even
university partners, right? And everyone I ask the same thing, and probably I'll open it for everyone. How one should decide which country, which course, which city, whether to go abroad, whether not to go abroad. Not for everyone, right? No. Right? आपके कुछ and आप तीनों के अलग हो सकते हो क्योंकि Yeah. आप प्रिपेयर कर रहे थे फिर नहीं गए, आप जाने के बाद दोबारा यूरोप गए, you went abroad, you've been in the ecosystem almost now 7-8 years, right? 10 साल आपको हो गए. तो आप अगर आपके नेफ्यू आ जाए आपके पास एंड अमन मुझे ना अंडरग्रेड के लिए यूके पढ़ने जाना है और मैं यूके और यूएस में कंपेयर करूँ, क्या बोलते हो आप? अपने नेफ्यू तो बोल नहीं That's सकते a real story. मेरी cousin sister, she asked, I think 6 months back, ना. राइट. कि मुझे जाना है, and she was true to think कि हाँ मतलब मेरे से GMAT वीमेट तो लिख के स्कोर तो आएगा नहीं, GRE में लिख नहीं पाऊंगी, तो I cannot go to the top universities. राइट. तो क्या करूँ? IELTS लिख सकती हूँ, IELTS में 6-7 बैंड ले आएंगे, तो क्या करना चाहिए? And she is earning well in India, मतलब 8-10 लाख का पैकेज है अपना, तो मैंने बोला क्यों जाना है? क्यों जाना है? मतलब what is the ultimate goal? तो and she at the age of 21 नहीं मुझे explore करना experience ये वो which can be a Yeah. true thing. Absolutely. Then I asked her यार why? Then I hypothetically I told her कि अच्छा तुम वहाँ पे गई, हो सकता है 2 साल बाद जॉब शायद ना मिले, ना लगे. है ना? अभी 30 लाख का लोन भी लेंगे, फिर 2 साल बाद जॉब ना मिले, इवेंचुअली मिल जाएगी, बट 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है उबर में डिलीवरी करनी पड़े, उसके बाद हो सकता है एज ए स्टोर मैनेजर यार हम इतने रेस्ट्रिक्ट है ना, और हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, Yeah. और हम इतनी रेस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं कि लोग डर ही जाएंगे कि Yeah, Uber में उनको all I'm saying is कि I just said, and I'll give you one counter example as well, कि are you ready to do all of this? And she said no. हाँ. Yesterday I was talking to one person from our own company. He also asked me कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, and I also told him कि it's a difficult path. जाओ, सक्सेस बहुत मिलेगी, मेहनत भी बहुत करनी है. और he said कि यार मैं तो मेहनत तो मैं करना ही है मेरे को लाइफ में, तो मुझे मेहनत से डर नहीं लगता. मैंने कहा फिर you should go. तो that's objective function and being true to yourself कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. Very personal choice. आपका Yeah, जब personal नहीं पर्सनल है, बट वही अगर आप अपने बेटे के लिए कैसे आप प्लान करोगे, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड, इंडिया से बाहर से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज क्वेश्चन फॉर ऑल 6 of us. Yeah, so I think this is मतलब मेरी वाइफ के साथ डिस्कस होता है. अब मेरी वाइफ बोलती है you have to plan for her. I'm like she's 6, 12 साल बचे हैं. I don't know how she evolves. All I can focus on, again I'll go back to that connecting the dots. All I can give her is sufficient kind of ground कि she explores 10 different things right now. बस अभी 8-10 साल बड़े हैं उन्हें. Yes, I need to plan from a financial standpoint. बट अभी मतलब अगेन आई रिमेम्बर जब मेरी बेटी का एडमिशन हो रहा था स्कूल में, तो पेरेंट्स वर कमिंग इन एंड आस्किंग कि अरे आपने कैम्ब्रिज स्टार्ट किया है, उसमें होगा तो फिर आईआईटी हो पाएगा नहीं हो पाएगा. एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि मतलब कर क्या रहे हो आप लोग पहले, राइट? मतलब आप स्टूडेंट को पहले, बच्चे को पहले नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, कैम्ब्रिज को आप इंडिविजुअली इवैल्यूएट करो. 10 साल बाद आईआईटी रहेगा नहीं रहेगा, आईआईटी जेई रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब किसको क्या पता है. लोग प्लान तो करते हैं ना लोग यार. So I'm completely against that. मतलब मेरे को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए. आप बिल्डिंग ब्लॉक्स दो. आप अपनी लाइफ में कितना लंबा आगे का प्लान करते हो? 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल? क्योंकि कुछ तो प्लान करोगे ना. आपको कुछ तो आपको डेटा पॉइंट्स है, आपको पता है कि यार आईटी मोस्ट लाइकली रहेगा, उसकी वैल्यू मोस्ट लाइकली रहेगी, एंड हेंस यू नीड टू यू प्लान इन अ सर्टेन वे. So I'll say at least जिस हिसाब से AI चेंजेस हुए हैं, I'm not sure किसके plans थे and कितने approved हुए हैं. कोविड हुआ. So frankly speaking, if you ask me, my personal philosophy is very clearly कि I have a dream कि I have to do this. I had a dream about sports, that's still there. I have a dream about Gyandhan कि we need to be at this place, right? But that is a dream, that is an end goal है. अब उस goal के लिए frankly speaking, I don't know the path, right? So I try to manage to my annual goal. 3 महीने, 1 I try साल, to 12 manage to महीने. my annual goal and then I'll have to see कि changes क्या हो रहे हैं, right? ठीक है. Now, and I will have a plan, I will have a thought process कि मैं अगले 5 साल में क्या कर पाऊंगा, but I can't see कि अगले 10, I don't understand कि 10 साल में क्या इसमें एक होगा. क्वेश्चन और आ रहा है मेरा, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट करो, कि सी देयर वर टाइम and I was thinking about only 3 months, भाई सर्वाइव करना है 6 महीने, उस वजह से फिर आपके एक्शन भी वैसे होते हैं, आप हायर वैसे करते हो, आप ऑफिस वैसे लेते हो, और वो
कभी कभी बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, राइट? बट देन दैट्स अ फियर है, राइट? मेरा भी है कि आई गो विद द फ्लो, यू नो. नाउ आई स्टार्टेड सेइंग बिलीविंग भी क्या 30 साल मुझे ये करना है, यू नो. एंड वो कॉन्फिडेंस भी आने लगा है कि यार यूनिवर्सिटी लिविंग को यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग बना सकते हैं, या यूनिवर्सिटी लिविंग को हम एक स्टूडेंट रीड बना सकते हैं, यू नो. क्योंकि Right. एक लेवल पहुंच के तो अब लग रहा है कि हाँ यार कर तो सकते हैं. Right. होगा नहीं होगा बहुत सारे फैक्टर्स है, Yeah. बट लाइक एटलीस्ट थिंकिंग 30 years एंड दैट गिव यू सुपर पावर. आप शॉर्टकट्स करना ले लेना बंद कर देते हो, यू नो. बट अगेन एक स्टेज पे आए तो हम ऐसा सोच रहे हैं. So I'll give you the example. Like again, I've been open about it. Like we would want to be a bank at some point in time. That is our right, dream. right. Now the point is ki when I say a bank, I mean I'll go back to that. There is a quote by Bill Gates way back in '95, which I don't remember the exact quote, but it equates to basically financial services will be there. I mean, we don't know if 20 years from 30 years from now bank will be there. So when I say we have a dream to be a bank, I want to be a financial services. I want to solve for the financial services problems of a student. प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम के अब तरीके हो उसको सकते approach कैसे करना है I don't know. हैं. Right. So that is my dream, and I will try to figure out how to solve for that dream. Fair bit. Right. And so I will have a 5-year plan. ऐसा नहीं है कि हम लोग का 5-year plan नहीं है. I have a 5-year plan, but I don't think कि I'm going to. हाँ आपने अच्छा बता दिया. मैंने कहा यार फंड रेज बिना बिजनेस प्लान के मिल जाता है, हमें तो नहीं मिला. मांगते रहे 3-5 साल का. companies there. नहीं, मैं वही कह रहा था. Another key difference between what you said and is कि individual. So मतलब even my daughter, right? So is an individual. उसकी choices, उसकी preferences वो time पे vary करेंगे, which is the Right, which right, yeah, right. which is the case. So with RA as well, right? So तो ये एक जो चीज तो change- समझ आ गई, सॉरी मैं इंटरप्ट करो, कि आपके पास कोई ज्ञान लेने आएगा, यू नो, आप ज्ञान धन का तो दे दोगे, बट करियर काउंसलिंग करने दोगे. और क्योंकि आपकी फिलोसफी कुछ भी नहीं है कि 5 साल 10 साल कैसे प्लान करना. So I'll tell you again. Same as an example. I have had multiple relatives of mine reach out to Reach me. out to you. I've had other folks reach out to me. I had a known who reached out to me. She is a smart girl, currently pursuing her undergrad from I think DU in economics, and she intends to pursue a master's in economics. Now, so I discussed, yeah, quite smart chap. I told her, कि यार, like, if you ask me an answer, I will always say कि US is the best place to go for anything. It's the मतलब economy बहुत बड़ी है. अभी भी I'm comfortable. शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा है, बट आई विद यू. It's the biggest economy at the end of the day. I mean, it Yet. beats all the other Yet. economies, right? Yeah. So opportunity and competitive. It's like this is same as कि there is a Bangalore, yeah, there is a Delhi. There is a reason why these are hubs, right? When you get smart people at a place, magic happens, राइट. right? So I think I told her कि this is the thing. But going back to your point, उसके बाद I told her कि यार I'll give you some building blocks. I'll tell you अगर तू सोच रही है कि ये करने के बाद क्या होगा, I can tell you कि I can give you an example कि Capital One का one of the chief risk officers was a philosophy grad. So you don't need to necessarily be a engineer or a economics grad to get to that role, right? People are different, and that is how the world works, right? So I gave her all that. We had all that discussion, and then I told her कि यार हमारे consultant marketplace के through एक paid consultant, एक premium consultant. I said that कि देख, you need specific guidance. I think you should talk to this and this guy, experts. and then figure out कि अब क्या करना है, right? तो तू high level पे discuss करेगी, I'm happy to discuss with you, right? But frankly speaking, my approach is different, and the other thing is I'm not the expert. The specific questions मैं नहीं बता पाऊंगा. वेल आपका क्या व्यू है इसमें? I will add on to the point. This will seem like कि मैं playbook दे रहा हूँ. I will try to be very जो भी आपका objective. व्यू है, जो भी आपका ओपिनियन है, नहीं, मेरा opinion is थोड़ा अभी अपने broad, बच्चे के लिए but आप कैसे मैं- करोगे? हाँ. ऐसे ले लेता ना, वो गलत तो नहीं होगा. तो मैं वही कह रहा हूँ, एक तो इंडिविजुअल चॉइस वाला जो पॉइंट है जो इन दोनों ने बोला है उसको मैं सेटिसाइड कर रहा हूँ. इंडिविजुअल चॉइस एक अलग एक्सेस है, हाँ. उसके परपेंडिकुलर एक दूसरे एक्सेस है, व्हिच Right. इज अबाउट इकोनॉमिकली क्या वायबल है, राइट? लेट मी Okay. टॉक अबाउट दैट. ओके. सो इकोनॉमिक वायबिलिटी में, एंड यहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं टू मेक देयर ओन और डू देयर ओन वेरी स्पेसिफिक रिसर्च. So what I feel is, मतलब if we equate this to cost benefit, very simple cost benefit. Cost is your tuition fees, Yeah. opportunity cost of not working in India while you are studying, other living expenses, all the other expenses, Right. extra expenses. ये आपके opportunity cost है, pure financially. There is some mental stress as well because you'll be away in a different Yeah. country. Add on that. Now on the benefit side, benefit is the income that you will gain, but the additional, not the income,
this is where people make a mistake. The additional savings that you will have after your target course versus the savings that you will have if you don't do that target course. Opportunity cost. Opportunity नहीं, ये opportunity benefit मतलब कि आपका Okay. हाँ, Yeah, कि fair bit. आपका let's say US में इनकम आपकी 5 गुना है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन आपकी सेविंग वहाँ पे कम होंगी. तो you just look at those savings and यहाँ पे इंडिया में if you continue on a career path, you will get some couple of promotion in these 2 years. You will get those savings. Compare उसका आप 10-year plan बना लो, उसको compare करो. ये हो गया. बट इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है. एक तो आपकी probability of getting a job within let's say 1 year or 2 years after graduating. Yeah. Second, what is the expected income that you'll get after completing your target graduation? Now, probability of getting a job, right? So इसके लिए हम लोगों ने we've made some models actually, predictive models जो हम use करते हैं. Some of our lending partners have used that. और ये हम अपने हमारे एक छोटा सा obscure सा tool है, not मतलब we have not kept it obscure, we have not really promoted it. It's called University Compare. So if somebody goes to our website, types University Compare, so हम relative probability देते हैं आपकी job लगने की based on our research formula, research जो भी हमने करी predictive modeling वगैरह. Very interesting. It's very सेकेंडली जो इनकम लेवल है, अब ये जो इनकम लेवल इन जॉब का ये एक हमारा गिवन हो गया. नाउ दीज आर ब्रॉड रेंजेस. ऑब्वियसली हम 2-3-4% के रेंज में आपको देंगे, लेकिन आपको किसी बच्चे को स्पेसिफिक करनी है. मैं सबको ये फंडा देता हूँ जो मेरे से पूछने आता है कि भाई अपना कोर्स कॉलेज को जाके लिंक्डइन पे निकालो, लिंक्डइन पे अपनी यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें पीपल्स में जाओ, उसमें अपना कोर्स सर्च करो और अपने सेम कोर्स के इंडिया से जाने वाले 500 लोगों की रेज्यूमे को एक्सेल में निकालो मैनुअली. Very good. अब great hack. राइट, Great आप hack. बेसिकली 50 लाख लगा रहे हो, आप इतना इतनी तो रिसर्च करोगे. हाँ, हाँ यार, वो भी निकली भाई AI में डाल दे यार. हाँ. 50 LinkedIn डाल के डाल दे यार. करेक्ट. आप कम से कम 500 URL तो लेके और उसको बोलो इस तरह से लिंक्डइन में एक्सेल बनानी है. एंड देन यू विल फाइंड आउट ओके इस बंदे को हाउ मेनी पीपल डिड फॉर योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी फॉर योर स्पेसिफिक कोर्स एक्चुअली गॉट अ जॉब विद इन सम टाइम. लाइक इतनी रिसर्च अगर आप करने के लिए हो तब आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा. वेरी गुड यार. ये IIT वाले ना तुम डेटा पॉइंट में बहुत बाय द वे ये And logic है यार, logic है. कैलकुलेशन जनरेशन ने बोली है, इस पे हमने एक टूल बनाया हुआ है वेबसाइट पे, एस्टिमेट फ्यूचर. एस्टिमेट फ्यूचर एंडिंग छोड़ा टूल में उसमें नहीं है. वैसे नहीं पक्का छोड़ा. एडमिशन नहीं करना. मैं बता रहा हूँ, देख लो. देखिए व्हाट वी सेड इज कि स्टूडेंट का बेस्ट आउटकम इज अलाइन विद आवर आउटकम, राइट? तो Right. हमने जो टूल बनाया है उसमें वी टेक एज एन इनपुट. अच्छा, आज आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना पैसा आप लगाओगे, तो बोथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कितना पैसा आप लगाओगे. उसके बाद उसमें फीड किया हुआ है डेटा कि ऑन एन एवरेज कितने इस की जॉब country मिल का. जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इट टेल्स यू इन नेक्स्ट 10 इयर्स अगर आप इंडिया में रहते हो वर्सेस आप अब्रॉड जाते हो, आपकी सेविंग कहाँ एक्स्ट्रा होगी. नेट टू एप्पल कंपेयर हो रहा है. Apple to- Not- हाँ, आपने यहाँ पे एप्पल दिखा दिया, यहाँ पे ग्रेप्स दिखा रहे हाँ, हो. वो नहीं हो रहा है. वो नहीं हो रहा है. ये In बहुत fact, इंपॉर्टेंट. उसमें अगर कंट्री सिलेक्शन. कंट्री सिलेक्शन है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे आके आज डालेंगे कि आई एम केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई डिड केमिकल इंजीनियरिंग और आज मैं 30 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरे को रिकमेंड करेगा मत. हाँ, हाँ, नेट पे सेविंग है. हाँ. इनफैक्ट वो बाय कंट्री बताया था, इस फलाने कंट्री में आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ आपका ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी नेट रिटर्न इज गोइंग टू बी नेगेटिव. और जो रिटर्न पीरियड कहते हैं कि इन हाउ मच टाइम विल यू एक्चुअली मेक पॉजिटिव पे ऑन दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. टाइम ज्यादा है. हाँ, टाइमलाइन वो आपका 7 साल आ रहा है. आपका बेसिकली ब्रेक इवन You're not only comparing price to price, you're also comparing period, which हाँ. is very important. क्योंकि Exactly. इंडिया में टाइम इज करेंसी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एग्जैक्टली. बट एक बात बताओ, किसने आपको ये वो दिया कि भाई आपके टूल्स डेटा सेट इतना है कि डिसीजन भाई आपका टूल पे मैं अपनी जिंदगी डिसाइड कर लूँ. एक उससे पहले मैं भूल गया मैं क्या पूछ रहा था. बट उससे पहले एक और क्वेश्चन था कि ये तो ये डेटा सेट कहाँ से आ रहा है, राइट? मैं भी पूछ लिया. एनीवेज, सो डेटा सेट तो एक तो हम लोगों ने इनिशियल जो रिसर्च करी इट वाज प्योर स्क्रैपिंग, राइट? स्क्रैपिंग ऑफ ऑनलाइन फोरम्स, जो भी डेटा आप देखो, इंटरनेट सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर बॉट्स इज टाइटर एंड टाइटर दीज डेज, तो स्क्रैपिंग इज मोर डिफिकल्ट. राइट. सो लेकिन जब एक बार स्क्रैपिंग करके इनिशियल डीबी बना लिया, उसके बाद जो बच्चे आते हैं उनका डेटा हम Update about करते हैं. उनका डेटा एग्रीगेट करते हैं, डेटा बड़ा होता रहता तो है. क्या क्या डेटा मतलब जो आजकल LLM हाँ, crawling है, वही, that is what it was. तो हमारा सेम है. हमने accommodation के लिए कर लिया ये. You know, if there are 6 million beds in organized market and there are another, I don't know number, but another I believe 20-30 million of unorganized, right? In at least the market we are in, Yeah. right? So because we have onboarded everyone, right, and we have that
scraping, listing, whatnot, and that's where this cost of living calculator came in. Right. You know, because same कि यार क्योंकि अभी भी ना हमारे टीम में भी पहली कॉल बजट क्या है, हाँ. अरे भाई वो अभी जा उसको रहा है, बता. तुझे बताना है, तुझे पूछना नहीं है बजट क्या है, हमें डिफाइन करना है, और फिर कहते थे बजट लो है. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जो पहले इनके पास इनकी प्रोफाइल बना दी ने, यू नो, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट देयर, Right. बिकॉज इंडिया में ऑप्शन भी कम थे या फिर आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर कम था या अवेयरनेस कम था, एंड उनको प्रोफाइल बना दी, उसके लिए गए हुए. फिर हुआ इंडस्ट्रीज के सारे बच्चे जाना शुरू हो गए, राइट, बिकॉज अगेन यू नो एक स्टाटस भी आ गया था, ऑप्टिक्स भी आ गया था, एंड प्रॉब्ली दे हैव फाइनेंशियल Yeah. यू नो ऑप्शन. देन थर्ड हुआ कि यार अगर हम पंजाब से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हम तो क्यों पंजाब में मेहनत कर रहे हैं, एंड भाई सब हंसने वाली बात ये है, हमें लगता है वो स्टूपिड नहीं है यार, वो उन्हें पता है कि मैं फार्म में काम करूँगा तो मैं इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया फार्म में काम करता हूँ ना, आई विल गेट मोर मनी, आई विल हैव अ मोर डिग्निटी ऑफ लाइफ, Quality you know, of there's a life, quality of, you know, and the status optics मतलब है, सेम फिर कनाडा में, यूके में हुआ, यूएस में हुआ, राइट. नाउ इट्स अ फेज 3 जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल्सो रियलाइज कि ग्लोबल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन and through immigration, two different things. Yeah. Universities are also, I mean, they know it, but now they have no other option. या तो रैंकिंग खराब होगी या बच्चा छोड़ के चले जाएगा तो मान्यता वैसा हिल जाएगी, राइट. सो हेंस you know they also are right, and seemingly education partners also realize that, and probably जो हमारी सबकी जर्नी रही है ना, by choice, by design, whatever, because you know इसलिए हमें स्केल करने में टाइम लगा. यार 10-10 साल हो गए ना, 10-10 साल के लिए रेवेन्यू कर रहे हैं हम, यू नो, बाय स्टार्टअप स्टैंडर्ड, बाय अपने आपने रोहित बंसल इधर उधर की बातें करी, आए हो ना क्वेश्चन कि भाई क्या करो 10 साल से, यू नो, आईटी वैल्यू है ना. तो स्केल करने में टाइम लगा, राइट. बट हमें इतना पता है कि अब जो अब बोल सकते हैं कि यार इतना पक गया, इतना यू नो आई गेस एक हो गया जहाँ पे हमें पता है कि वी कैन टेक डिसीजंस बेसिस, क्योंकि हमने वो इनिशियल जो अट्रैक्टिवनेस था या वो एक वो था ना, यू कैन गो दिस और दैट वे कि एडमिशन भी करेंगे, सब करेंगे, राइट. वो सारी चीज़ें निकल गई, एंड प्रॉब्लम वो डीएनए भी है कि यार लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अपना डीएनए भी है कि फ्रूगल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, लेगेसी बनाएंगे, राइट. तो कमिंग बैक टू इट नाउ विद ग्लोबल मोबिलिटी एज अ थीम एंड फेज 3, यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस न्यू वेंचर इन दुबई. आई गेस मैंने पहले लॉन्च नहीं बताया नहीं, या एटलीस्ट पॉडकास्ट में किया, बिकॉज मेरा थीम है कि यार ग्लोबल मोबिलिटी, एथिकल ग्लोबल मोबिलिटी, क्योंकि मोबिलिटी स्टूडेंट मोबिलिटी पहले भी थी, आगे भी रहेगी, वो नहीं चेंज हो रहा, मैक्रोस नहीं चेंज हो रहा, एटलीस्ट 10-20 साल, यू नो. एंड जब ये हो रहा है तो वाई ओनली स्टूडेंट्स ही प्रिपेयरिंग, यू नो, और वाई पेरेंट्स का काम खाली बस SIP करके छोड़ देना है, या फिर 8 में क्वेश्चन करना है, या फिर 2 साल 3 साल, नो. सो ग्लोबल मोबिलिटी बाय एजुकेशन एंड ग्लोबल मोबिलिटी थ्रू इमिग्रेशन, not only or ethical immigration, not only of the students but what of parents. So I keep telling this. So now when Faith got born, I'm very clear कि यार एटलीस्ट SIP बना दो, 15-20 हज़ार की SIP 18 साल में $500,000 के आसपास होगा, तो एटलीस्ट कहीं पे ही पढ़ लेगी. वो चॉइस मेरे पास नहीं थी. अब 18,000 में उसे स्टार्टअप करना है, उसे शादी करनी है, या कहीं पढ़ने जाना है इंडिया में, एटलीस्ट चॉइस ऑप्शन है, यू नो. देन अब मेरा भाई है, you know, my nephew is 12 years, right, 8 में है, same, right, but then probably, I might be wrong, probably he has not been, you know, now he's working with us, so he's aware of these things in education and awareness and mobility. तो मुझे लगता है उसने 10-12 साल में SIP का गोल नहीं बनाया, right. so that means my nephew have only 6 years, या तो वो अब slog करे, SAT करे, ACT करे, you know, प्रोफाइल बनाए, and then उसके बाद भी you know he will be paying 4x or 3x of local domestic student, right. So why don't now my brother should talk about or work about on a global mobility as a, you know, as a talent visa or a UAE golden visa, what not, right. And इसलिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये तो सही है यार. मेरे एक मेरा इन्वेस्टर, उसने भी मैंने देखा यार ये स्मार्ट लोग अच्छा ये कर रहे हैं कि पहले सिटीजनशिप ले रहे हैं, फिर बच्चों को भेज रहे हैं, लेजिट है, राइट. कॉस्ट बेनिफिट्स. दूसरा, their kids are not getting string attached with a policy कि यार आज प्रो इंडिया है या आज हम यू नो अगेंस्ट इंडिया है. तो दिस इज माई थीम एंड दिस इज एक्चुअली द वे आई एम प्रिपेयरिंग. आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी प्रिपेयरिंग एंड थिंकिंग टू, एंड दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यार तुम लोग नहीं सोचे, मैं ज़्यादा सोच लो, बट देन आई गेस मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, राइट. एंड दिस इज माई थीम, you know, and this exactly will be, you know, how I am planning. बाकी तो भाई फ्लो में जी रहे हैं,
कल है नहीं है पता नहीं, राइट? सो आई गेस हमारे बहुत सारे कॉमन है कि सेम ईयर, ये मेरी टीम ने स्क्रिप्ट बना के भेजी हुई है, सेम ईयर डिफरेंट प्रॉब्लम, गुड दैट इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, आई ऑलवेज वांट टू compete with people who are smarter than me for different problems. फ्रूगैलिटी का कल्चर आई गेस हमने काफ़ी बात कर ली, और डे टू DNA है ही प्रॉब्ली. चलो आप तो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहाँ पे लाइक इनिशियली आपने बिल्डअप किया. भाई आप तो अमीर आदमी से आ रहे हो, DPS में पढ़े हो, फ्रूगल पुल से आए हो, सिल्क का काम था, तो फ्रूगैलिटी इनकी वजह से आ गई कि बिकॉज, और आप तो बढ़िया भी नहीं हो, धंधे वाले हैं लेकिन. बट धंधे वाला यार, पंजाबी धंधे वाला ना बड़ा अलग होता है. तो ये पटना वाला है, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एक तो पंजाबी ऊपर से धंधे वाले तो मोस्टली फ्रूगल कम होते हैं. So, जैसे आपने बताया कि यू वांट टू कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट नीड्स एंड अकोमोडेशन, राइट? एक पर्पस बिल्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन तो इज समथिंग दैट इज, आई वुड से, रिलेटिवली सिंपल, नॉट दैट इजी बट रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि डिफाइंड प्रॉब्लम है, उसको पहले सॉल्व करना है. बट जो आपने बताया, एंड विच इज व्हाट वी हैव एनकाउंटर्ड when we have and obviously we work together, and that's a problem we see in the students we send to you. इसकी उनको पर्पस बिल्ड में नहीं रहना है क्योंकि बजट में नहीं है, जो भी 50 रीजन है उनके. तो वो जो सेगमेंट है उसका सोल्यूशन है क्या? मतलब आप लोग कैसे उसको अप्रोच कर रहे हो? प्रैक्टिकल क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास आज की दुनिया में, आज के दिन में? रात I'll take this and then so पहले मैं इस तो पीछे जाऊँगा, so बहुत इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन ऑप्शन है क्या? PBS से फैंसी नेम है, आपको पता, मुझे पता, राइट? सो फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए पेरेंट्स, फॉर एजुकेशन पार्टनर ऑल्सो, इवन फॉर यूनिवर्सिटीज, दे हैव टू थिंग इन माइंड, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस. करेक्ट. तो पहले तो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस से शुरू होता है. फिर ऑन कैंपस इज द यूनिवर्सिटी हॉल्स, राइट? इवन अगर मेरी डॉटर भी अंडर जाएगी तो मैं चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में तो यूनिवर्सिटी में मिले. हर यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कहीं कहीं इंडिया लेट हो जाता है, चाइना जल्दी मार्केट है, लोकल डोमेस्टिक मार्केट और जल्दी मार्केट है. सो फर्स्ट, anyone who's looking for accommodation, the way they should start early for education loan and then explore, right? Similarly, the moment you know which city, which university you're going, you should start for looking out for accommodation and do apply to university halls. First year में UK में, US में guaranteed मिल जाता है, but not जरूरी है guarantee कि वो same building, वो same room या same IT में होते हैं ना आपके अलग अलग हॉल, hostels and dorms. हाँ, मतलब buildings होती है, Yeah. जैसे I guess कानपुर में कहीं पे हॉल कहते हैं, हमारे Halls. हॉस्टल कहते हैं. हॉस्टल्स, राइट? तो सिमिलरली जरूरी नहीं आपको वही सेम हॉस्टल मिले या हॉल्स मिले या सेम रूम टाइप मिले, राइट? तो अप्लाई टू यूनिवर्सिटी हॉल, बट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड आल्सो एज अ फर्दर ऑप्शन, इवन इफ यू आर अंडरग्रेड, राइट? देन इफ यू आर अर्ली इनफ, prepared enough, lucky enough, you might get a university hall, you might not. If you have not got it, then there is off-campus accommodation, which is organized, which is called PBSA, purpose-built student accommodation. As the name says, it's meant for students, all bills included. All it's been managed professionally by professionals, so that not necessarily all university halls are cheaper or better than off-campus, and not all off-campus can be cheaper or better than on-campus, right? अब ऑन कैंपस में आपने बोला PBS से, तो PBS इज यू आर राइट, सो व्हेन वी थॉट यार पहले ऑर्गेनाइज मार्केट को कंसोलिडेट कर लेते हैं ना, सो वी डिड दैट, एंड आउट ऑफ द 6-7 मिलियन बेड्स अक्रॉस, so we have around almost 2 million, 1.7 to 1.8 million beds onboarded. Then for the first year, for the first 5 years, we're like, okay, PBS से हमने कंसोलिडेट कर लिया. Most of the countries we are in, UK, Australia, Ireland, US, Canada, 80-85% of those PBS से we have consolidated. And then he asked me कि सौरभ इतना ही करना है, क्या करना है? And ये तो हम बोल रहे हैं ना PBS से ले लो, but number says 1 out of 6 students get university halls, which is 16%. Yeah. Around 25 to 40% is people staying in this PBS or organized market. But 50-60% unorganized market में रहते हैं, either because of budgets, low and high both. Yeah. I get lots of students who are going to LA and Boston and New York and London who are like, all the Bollywoods and industries and whatnot, कि मेरा अपना घर है, right? But मुझे और प्रीमियम रहना है, right? So ऑफ कैंपस अनऑर्गेनाइज, इसमें बजटेड और प्रीमियम दोनों. बजटेड को यूके में HMO बोलते हैं, यूएस में मल्टी फैमिली बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली पैट्स बोलते हैं या BTR बोलते हैं, राइट? एंड देन प्रीमियम में PRS होता है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल सिस्टम्स, राइट? एंड देन देयर इज होम स्टे, एंड देन देयर इज शेयर्ड अपार्टमेंट्स. आप जैसे PG हो गया, Airbnb टाइप हो गया, बट ओनली फॉर स्टूडेंट्स. So these are the type of accommodation.
नाउ कमिंग बैक टू यू नो कि हमने ये पहले उठाया क्योंकि दैट वाज आई वुड से कंपैरेटिवली इजियर प्रॉब्लम टू सॉल्व Yeah. एंड उस समय इतनी अकल भी थी राइट एंड देन वी रीच अ लेवल जहाँ पे लाइक यार अब 85% ऑर्गेनाइज मार्केट हमने कंसोलिडेट कर लिया, लेट्स नाउ गो वर्टिकल. So that's why at University Living we launched a company called Unionist for flexible contracts, and then we acquired a company Student Tenant for budgeted to cater local domestic market in UK and now probably in Ireland and then Australia, whatever. So this is where we've been building up. Probably Maya want to take it up and add to it. I think covered the majority part, but how we are going after this unorganized sector is with the acquisition that we had of Student Tenant. Right. So that focus on streamlining and digitizing the journey of unorganized players or landlords in the market to make it more organized on a platform. So this is how we've been going deeper in one geography, and plans is that how we can replicate the same model in Got it. US, in Australia, in Ireland, where there is a lot of need of digitization of and helping these individual landlords Yeah. to make their inventory led of things. Yeah. Because individual landlord, they are paying 2 weeks or 4 weeks of rent to a local Broker. broker. Yeah. And how we are solving is we are at a very, very nominal cost. We are giving them the entire distribution which we have created over the past 10 years Yeah. from not just from India, it's Southeast Asia, Middle East, Europe market, where an individual landlord is getting a distribution from all across the world. Hmm. So we are helping them to sell their inventory fast. Hmm. Plus giving them more opportunity and more options to our students which they need in terms of who are not able to take a decision whether to stay in a PBS. Hmm. See, there are a few more points, So again, what we realize that how we can take unorganized market and make it organized. That's where the bigger delta is. Yeah. And we are fortunate enough to survive so far. Because the industry, we will not survive. It's not an easy business. Yeah. Cash flow, 18 Yeah. महीने, right? Then it's not $2,000 profit pool, right? And that's why lots of people SIM card वाले यार इन अंकित से मिलवा दो, तो but पार्टनर्स के लिए उन्हें अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज लेना है. एंड देन अगर आप देखो, सो आवर फर्स्ट फेज वाज लिस्टिंग प्लेटफॉर्म टू अ मार्केट प्लेस जो मैनेज मार्केट प्लेस, एंड नाउ वी आर बिल्डिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट हाउसिंग. एंड दैट्स वो जो चैनल पार्टनर बनाए हमने, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम PMS बनाए, कुछ एक्विजिशन करा, कुछ जॉइंट वेंचर करे. सो बिल्डिंग दैट इकोसिस्टम वेयर इन स्टूडेंट wherever they're going, we are covered. So marketplace network effect आया. What they want, budget, premium, short term, long term, we got. And then how they want to look for B2C, B2B, or university through B2I. We are on lots of university website, UCL, Imperial, whatever. Right? So idea is how we build a global distribution system. I believe there none exists. I believe, I might be wrong. Probably because it's a very hard problem to solve. Yeah. सबसे API लाना, चैनल मैनेजर बनाना, Yeah. यहाँ से एजुकेशन पार्टनर्स को अडॉप्ट कराना, वहाँ से एकोमोडेशन पार्टनर को अडॉप्ट कराना, फिर यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट कराना, राइट. बट देन नाउ वी आर वेरी क्लियर कि आप जोमेटो बना रहे हैं या फिर नो ब्रोकर बना रहे हैं, मार्केट प्लेस बना लिया, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बना लिया, प्रॉब्ली एयरबीएनबी वाला मॉडल हो गया, बुक माई शो अब बना रहे हैं इन अ नो ब्रोकर वे, Yeah. if I can put it, and figure it out. Yeah. Right. So we talk about ecosystem. Any question? Sorry, I guess there's some I question. think a question है कि like in your journey, like because you guys catered not just to Indian citizens, right, globally, like was that from day zero और कुछ और insight आया था at some point in time कि भाई room है सबके लिए करते हैं, how did that? भाई स्मार्ट फाउंडर बोलूँ तुम्हें तो पहले दिन से पता था कि हम तो इंडिया के लिए बना ही नहीं रहे, ठीक है. और अगर सही तरीके से बोलो तो वी वेंट विद द फ्लो. पहले इंडिया टू द वर्ल्ड हुआ, देन वर्ल्ड टू द वर्ल्ड हुआ, एंड देन द पेंडेमिक आया. वी वर क्लूलेस यार, बच्चा बाहर ही नहीं जाएगा तो एकोमोडेशन बहुत दूर की बात है ना. डिजिटल की बात होने लगी थी, ऑनलाइन पढ़ेंगे, राइट. बट one thing happened, and probably credit to the team and marketing team and everyone, that because we've been building like a global platform right from day one. ये क्लियर था कि यार उसके पीछे बिजनेस लॉजिक भी है कि यार अगर कोई यूके वाला बच्चा कॉल कर रहा है, वो कह रहा है इंडिया में क्यों कॉल कर रहा है, मुझे यूएस बुक करना है. तो वी वर वेरी क्लियर कि वी बिल्डिंग लाइक अ ग्लोबल बिजनेस, मार्केटिंग टच पॉइंट, बट द पेंडेमिक आया तो वैलिडेशन भी हो गया
यार लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट ने स्टार्ट लुकिंग आउट, यूके टू यूके लेने लगे, ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया लेने लगे, राइट? सो देन यस, यू नो, वो थीसिस वैलिडेट हो गया, एंड देन वी लाइक के स्केल किया, एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट 70% of our business is non-Indian student looking for accommodation through our platform. You know, so yeah, probably my How can many add to students it. are you? How many beds are getting you? Right. So यार ये मैं मतलब ओपनली बोल देता हूँ, तो टिल डेट वी हैव डन मोर देन 100,000 स्टूडेंट, 1 लाख बच्चे हम लोग एकोमोडेट कर चुके हैं। असिस्टेड तो मैं बहुत बोल सकता हूँ ना, Wow. 2 मिलियन 5 मिलियन, ये कोई भी प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा था किसी ने डाला कि उन्होंने 50,000 स्टूडेंट असिस्ट करे पर मंथ, मैंने भाई मुझे खरीद ले, राइट? बट हाँ, सो वी डू अराउंड 25-30,000 स्टूडेंट्स अ ईयर, you know, and 1/3 is Indian, 2/3 is non-Indian. I actually want to add to that. As our digital footprint increased, when they started the way it was online as well as a lot of offline connect that these guys built over a period of time. But as our digital footprint increased, our country spread increased, right? But it was not a corridor yet. But during pandemic, we changed our complete thing into a corridor strategy where we went from Choice ही नहीं रहा country to यार, a choice ही नहीं रहा, कुछ भी बोल रहा है, Correct. choice ही नहीं रहा यार, सर्वाइव करना, राइट? एंड देन हाँ, थोड़ा डेल्टा आने लगा। इसीलिए किया था Yeah. so that कि कभी भी ये बंद हो जाए तो ये बंद हाँ, कर ये दो, ये एक Yeah. करे तो ये बंद कर दो। एक और थीसिस था कि जब मैं 2012 में यूके था और यूनिवर्सिटी में आता, तो एक चीज समझ आई, सिक्लिकल बिजनेस है, तो जियोपॉलिटिकली रिस्क कहीं भी हो सकता है, Yeah. राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कॉन्शियस कि यार हमें, यू नो, इसलिए कहीं कहीं हमारे इन्वेस्टर्स में क्वेश्चन भी करते हैं कि तुम एबिटा सिंगल डिजिट 7-8% में क्यों, यू नो? पर अगर मेरी एस्टैब्लिश मार्केट है उसमें 22% दो, blended में साथ, और that too when we have having acquisitions, joint ventures and opening new markets. Right. So now in a way जहाँ पे हम अब, you know, bottom line build up कर रहे हैं, we know it's a 16-18% EBITDA business if you do it sanity, Yeah. in a sensible way, and not try to be number one and chase top line at any cost. And वो easy नहीं है, वो temptation तो रहता है यार, Yeah. राइट? हम एंड में इकोसिस्टम की बात करी यार, यू नो, आई बिलीव हम दोनों की, हमारे एक और हमारा, यू नो, एक डीएनए सेम है कि आई गेस तुमने भी बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं, राइट? Yeah. तुम भी लाइक बहुत चीजें आप अवार्ड्स लॉन्च करते हो, नो, फॉर योर पार्टनर्स। आई बिलीव देयर इज अनदर, आई डोंट नो बाय चॉइस है, बाय डिजाइन है, या फिर नहीं सोचा, इकोसिस्टम बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो। I think कुछ पहले भी शायद मैंने बोला था कि आइडिया हैज बीन इकोसिस्टम इनेबलर ही बनना है। अनेबल क्या बनना है, अब बनाना है, पैसा Enable रेज किया करना है, तो बना ही रहे हो। 50 करोड़ रुपए रेज किया है, यू नो, और लोगों के, तो अब तो बोल सकते हो कि इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम हम लोग, राइट? सो बेसिकली इंटरेस्टिंगली जो करना है, जहाँ पे एक्सपर्टीज है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेंडिंग। यहाँ एक्सपर्टीज एम्प्लॉयबिलिटी कैसे है? ये तो मुझे बजट लग रहा है भाई। नहीं, क्योंकि बिना एम्प्लॉयबिलिटी के लोन नहीं दिया जा सकता। मैं बताया था ना, जिसको सबसे ज्यादा पड़ी है बच्चों की जॉब्स की, तो वो माँ बाप lender के है। बाद, माँ बाप से पहले भी तुम हाँ। हाँ, माँ बाप तो सिविल ठीक है, सिविल करा होगा। तो अनसिक्योर्ड लोन तो तुम अपने है, बच्चों को कॉल कर पूछते हो भाई क्लास में गए नहीं गया, तो हम लोग करना चाहिए। काफी सर्विस करते हैं। प्रोडक्टाइज वे में कर रहे हैं, प्रोडक्टाइज वे में कर रहे हैं होना कि पड़ेगा। क्लासेस जा रहे हो नहीं जा रहे हो। काफी And which is सर्विस also करते हैं। solving university problem ना। या एग्जैक्टली सो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी के देखो टूल्स एंड ये सब हम लोगों ने काफी बना रखे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि ये हमारी एक्सपर्टीज है, जो अपना डिस्कशन हो रहा था कि फोकस क्या है, एक्सपर्टीज कहाँ है, यहाँ पे है। लेंडिंग समझ में आती है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेंडिंग आर लिंक्ड। बिना एम्प्लॉयबिलिटी की लेंडिंग है नहीं एजुकेशन लोन सेगमेंट में। उसके बाद जो अपना पॉइंट हो रहा था कि स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं पहले, क्योंकि जैसे आपने कंटेंट बनाया हुआ है, हमने कंटेंट बनाया हुआ है, स्टूडेंट आते हैं कंटेंट को ढूंढते हुए, राइट। हमारा स्टूडेंट पहले आ जाता है। जो पहले आ गया उसको एजुकेशन लोन नहीं, उसको पहले एडमिशन का ज्ञान चाहिए। अब वो कैसे दें, इसलिए वो कंसल्टेंट फाइंडर बनाया है। स्टूडेंट को पहले ये सभी क्वेश्चन जो हमने काफ़ी डिस्कस किया इस बार, आपने डिस्कशन भी किया, क्या उसको बाहर जाना भी चाहिए, जाना चाहिए तो किस कंट्री में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, राइट। एंड इसमें नोबडी, मतलब वी कैन गिव पीपल, मतलब इट्स ऑलवेज DYOR, डू योर ओन रिसर्च, राइट? वी कैन गिव पीपल द रोड मैप, ऐसे ऐसे आप कर लो, आपको मिल जाएगा। बट इफ यू गिव समबडी एन आंसर दैट लुक्स लाइक कि आप नॉस्ट्राडामस बनना चाह रहे हो, आप बिल्कुल बाबा हो, ज्ञान दे रहे हो, एंड दैट इज एक तो रॉन्ग है, एंड सेकेंडली इट्स नॉट इवन ट्रस्टवर्दी। हाउ डू यू नो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर मी? राइट। यू नॉट इवन स्टडीड मी। सो तो ऐसे टूल्स बनाओ, ऐसी डिस्कशन इनेबलर्स बनाओ, so that people can find those answers themselves and then stay true to that.
अगेन वहाँ पे भी अपना काफी ओवरलैप है. Hmm. But that is what, so that's why when he says ecosystem enabler, I think that's the right phrasing. Hmm. Ki we will do lending with the overriding insights of employability, but we will enable other things by having transparency across the board. तो ये Very good, yeah, very good. Because see, same thought. हमने SABI बनाया. Study abroad buddy for international education. 2 रीजन थे. एक मैंने इतने ओके कर दिया कि भाई तू कर ले ISB से, कंपनी पे कर देगी, और मुझे एक लोगो भी लगाना था ISB से पढ़ा हो. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई गॉट दैट AI लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम ISB, एंड जब से मैं इच कर रहा था कुछ तो AI में बनाना है, और तो वी थॉट क्या फनल बनाना है, एंड देन या तो मैं एडमिशन करूँ और मैं सबको बताऊँ कि नहीं हम सही बता रहे हैं, या फिर वी बिल्ड अ सिस्टम जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम राइट सोर्सेज, देन वी आर सिटिंग ऑन सो मच ऑफ डेटा पॉइंट्स, देन उससे पहले हम लोग रिसर्च डेस्क लॉन्च कर चुके थे, वो भी उसकी भी कहानी है, पता नहीं हमारा टाइम है नहीं है, राइट. नंबर ही नहीं है लोगों के पास यार. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब MEA बोलता है 1.3 मिलियन. भाई मेरे रिसर्च से आ रही है यार, मैं रशिया की रिसर्च नहीं हुआ, 50 लाख में नहीं लेता, राइट. तो वो भी नंबर सही नहीं है, गलत भी नहीं है वो नंबर, बस सही भी नहीं है, कि उसमें शॉर्ट टर्म एक्सचेंज वगैरह सब कुछ है. करेक्ट, राइट. उसमें वो दुबई के वो एक्सपर्ट्स भी है, जो 10th 12th में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, राइट. सो वहाँ से जब हमने सेबी बनाया तो थॉट ये था कि यार इकोसिस्टम अनेबल बनाते हैं, राइट. इकोसिस्टम बनाना है, मुझे ये भी पता है कि मैं इकोसिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता, मैं तो वैसे ही बहुत यार हार्डली बूस्टरैप कंपनी है, फंड भी वो कम रेस किया हुआ है, मिले ही नहीं यार पैसे, बट IPO जाना है बहुत क्लियर है, और सबको साथ लेके जाना है बहुत क्लियर है. एंड देन अगर आपने कुछ आपने इवेंट कर लिया, मैं रीइवेंट क्यों करूँ, राइट. तो वहाँ से फिर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार जैसे म्यूचुअल फंड सही है, पहले पाई बना ले, SIP लोग बढ़ा ले, डीमैट अकाउंट बना ले, उसके बाद आप लोन दे देना, मैं अकाउंट दे दूंगा, राइट. बट यहाँ पे हम तो श्रिंक ही करे जा रहे हैं, जो LSE जा सकता था उसको हमने आइलैंड में कोई प्राइवेट बिजनेस स्कूल में भेज दिया, फिर उसका आउटकम नहीं आना, फिर आउटकम नहीं आके 10 लोगों बोलेगा यार आइलैंड मत जाओ, भारी बनने मत जाओ, राइट. उससे अच्छा यार एटलीस्ट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी. आप यूरोप गए, होराइजन बढ़ा, यस, प्रॉब्ली नाउ ईयर से आफ्टर 10-15 ईयर्स किया वो बेस्ट ROI थी, राइट. तो एक तो ये सारी चीजें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इन एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कल से पैसे नहीं आ जाएंगे, 10 से 15 साल अगेन सेम, राइट. नाउ वी कैन से कि अच्छा है कमीशन नहीं मिली, अच्छा है 5 बजे डिनर मिल रहा था, राइट. बट देन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट इट अगेन अ पेशेंट इन्वेस्टमेंट, राइट. ROI आएगा बट ओवर पीरियड टाइम आएगा, एंड दैट टू व्हेन you are going to the right region, and when you are going there you are also studying and going to classes and just not doing part times and whatnot, because then you are losing the purpose. फिर तो नहीं जाना चाहिए, right. Probably तो मेरा this view है, जैसे लगा अंकित का कोई क्वेश्चन है. I agree with you. I think the only thing I'll say is कि नहीं जाना चाहिए. Again I'll go back to the same point कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मुझे पता ही नहीं बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है, तो किसी के लिए मे बी पार्ट टाइम इज द आंसर, मुझे नहीं पता, right. Because when he was giving his example he was saying कि मेरे को ये पता था ये right. अब पॉइंट ये है कि हमारे टूल्स हैं, हमारे टूल्स आपको ये बता सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन है कि मैं 3 साल में रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, या 7 साल में रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, बट इज दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू. मतलब इट्स द सेम एज कि अब इन्वेस्टर बोलेगा एडमिशंस कर लो, और आप ये 50 करोड़ ले लो, तो आप ले लोगे, आप अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर तो राइट. आप टूल से अपना डिसीजन चेंज नहीं करोगे ना, दैट्स अनेबलर. It's exactly. Always going to tell you, okay, you have a question, I'll answer your question. This is similar as कि ChatGPT में आप बोल दो solve all my life problems. आपको जो वैलिडेशन मिलेगी उससे डिसीजन तो बनेगा ना, जाना ही नहीं जाना. तो इन अ वे तो डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर ही रहे हो ना, बता ही रहे हो ना. बट इनपुट्स आपके हैं. इनपुट्स आपके हैं. You are making them think. I am helping you solve your answer, and then again you have to think that is not the right or wrong. That's not the truth. That's not the absolute truth. You have to take other things into consideration. Valid. मतलब सिंपल सी बात है कि लाइक अगर आप डॉक्टर पास जाओ, काउंसलर के पास, काउंसलर आपको डे 1 पे पहली मीटिंग में सब कुछ बता देगा, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये करो, वो करो, वो करो. एंड दैट्स नॉट नेसेसरली अ बिजनेस प्रॉब्लम कि उसको आपसे 10 सेशन लेने, 10 सेशन का पैसा लेना है, इसलिए वो आपको 10 सेशन में बुला रहा है, राइट. बिकॉज थिंग्स टेक टाइम. Absolutely. Right, and same is with admission counselors. The premium counselors where they charge money, there's a very valid reason why they're doing it. Right. Right. I should not be in that business. Eventually कोई पैसे दे रहा है.
वो जो वैल्यू दिख रही है Yeah. तो हम तो कुछ है ही नहीं ना बोलने वाले, भाई उसको वैल्यू दिख रही है, वो दे रहा है यार, स्मार्ट Yeah. तो सारे हैं, तो सबने रिसर्च करी है, कोई बुद्धू नहीं, या you know. So if someone is paying 5 lakhs or 3 lakhs or 2 lakhs, they are seeing value, that's why they are paying. या बाकी एब्सोल्युटली या ये जो टूल्स है मतलब लॉट ऑफ दिस आर स्ट्रक्चर्ड टू प्रोवोक दैट थॉट. Good point. अभी मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट समथिंग every student is Yeah. thinking towards. मतलब people who are going for finance MBA वो भी एट टाइम्स ये सब कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं कि Right. अच्छा मैं जा रहा हूँ तो अगर मैं 15 लाख या कमा रहा तो 2 लाख का 30 लाख 2 साल का 30 लाख तो Right. लगेगा, Opportunity apart cost from में 50 लाख भी मैं लगा रहा हूँ. तो लॉट ऑफ दिस इज क्या है, उसमें इनपुट है, अच्छा आपकी सैलरी इतनी है, वो अच्छा ये भी एक इनपुट है, हाँ मैं तो कमाऊंगा नहीं. हाँ, लोग नहीं सोचते. Yeah. लोग That अभी is मेरे structured. एक there was a friend of mine or colleague who was at 37 38 years, right, doing very well, like 18-20 लाख कमा रहा है, खराब नहीं आया इंडिया में 18-20 लाख कमा रहा है, and he's thinking मैं यूके जा रहा हूँ, एआई का ना ये करूँगा, you know, मेरी ना मतलब तुझे लगता है 50 लाख जॉब मिल जाएगी, नहीं वहाँ मिल जाएगी तो ठीक है, पर 50 लाख खर्चा वही नेट सेव है, you know, and then realize कि you know कि यार अच्छा नहीं जाता, and because मेरा वेस्टर्न इंटरेस्ट तो मैंने क्वेश्चन भी किया, मैंने तेरे मॉम डैड है, तुझे वहाँ जाकर सपोर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन तो पार्ट टाइम करना पड़ेगा, या पार्ट टाइम करना तो पढ़ने तो पढ़ ही नहीं पाएगा ढंग से, तो जॉब नहीं लगेगी या भाई, और तेरे पर लोन है, कार लोन है, घर लोन है, क्या कर रहा है? मतलब यू आर सेइंग कि हमारा डीएनए मैच कर रहा है, एंड द गुड थिंग इज कि वी आर एटलीस्ट इन डिफरेंट सेगमेंट्स. या I actually am comfortable with it, the same segment भी, because अभी तो again we are at the very nascent stage of this industry itself. Too small, अगर enable करना है ecosystem को truly enable करना है तो then we have to get out of the mindset कि ओ भाई मैं लोन का कर रहा हूँ तो मैं अब लोन वाले के साथ कुछ नहीं करूंगा, या लोन वाले को I'll try to kind of kick him out of the ecosystem, because then that's a very fine line. वो फिर तुरंत तुम्हारा पाई नहीं बढ़ेगा, oh let me do backward integration, forward integration, अब मैं accommodation भी कर लेता हूँ, फिर वो पाई नहीं बढ़ेगा यार, Exactly. पाई नहीं बढ़ेगा, Yeah. पाई नहीं बढ़ेगा तो फिर मतलब अगेन सेम, पाई नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टर भी नहीं देखेगा भाई, you know, जिसको भी पूरा इकोसिस्टम बनाना है पहले पैसा तो चाहिए ना, तो पाई बढ़ना बहुत जरूरी है. कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट डू यू थिंक you know after this episode if we all come together and अपने टूल्स सैबी में डाल दो और हम अपने टूल्स आप में डाल दें, राइट, क्योंकि आपने टूल्स बनाए हो ना, आप बोल दो एक इकोसिस्टम अनेबल होगी, बट यार बनाया तो आपने, वो आपका डिफरेंशिएटर भी है. Yeah. बट व्हाई कोलैबोरेशन नहीं होता या इकोसिस्टम नहीं बनते, बिकॉज या तो मेरा है, ये तो मेरा डिफरेंशिएटर है, यू नो, मैं क्यों एक जगह पूल कर दूं. अगेन वे ऑफ थिंकिंग है, व्हाट वुड बी योर वे ऑफ थिंकिंग? नहीं बिल्कुल करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, बट बेसिकली जैसे आपने बताया कि बनाया है, जिसने भी बनाया है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बट होस्टिंग कॉमन होनी चाहिए. Right. कुछ गलत नहीं है. Right. In fact, that will it's win-win for everyone. एग्जैक्टली कुछ गलत नहीं है, करते हैं. I think so. मतलब when we are talking about ecosystems, one of the things that I notice when I talk to a lot of people and partners, that there is a lack of trust. हाँ, बिग टाइम. Right? मतलब Competitive है ना. आप करना भी एक तो चाहते आप इस सोसाइटी Right, में right. ट्रेड डेफिसिट है यार, Yeah. ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी में हो. I think that is where I think हाँ. अगर आप टेक डेवलपमेंट देखो तो ओपन सोर्स सॉल्यूशंस होते हैं. Hmm. I think that is an equivalent about this Yeah. open. Hmm. Issue ये है कि why if someone develops a tool and then says कि it's my moat, अब मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, is because वो चलेगा trust नहीं. deficit की नहीं चल जाएगा अगर आप ओपन सोर्स थिंग्स, हाँ, there are open source multiple करोगे, things, हाँ, multiple हाँ, things built, हाँ. multiple big enterprises built on open source. ओपन सोर्स या इशू यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट वाला, कि अगर हाँ. मैं टूल दे दूंगा फिर आप उस टूल से आप लीड लेके आप उससे हाँ. ये भी करोगे वो भी करोगे, और आप मेरे ही टूल से मेरे ही कस्टमर को करोगे, ले लो यार. वो ट्रस्ट जब तक नहीं बिल्ड होगा कैसे ना. बन सकता है वो? आई थिंक वन इज ऑनेस्टी, मतलब पीपल हैव टू बी वन, बाउंड्रीज हैव टू बी क्लियर कट. ऑनेस्टी सब होते हैं, again, जब and तक has to एक be बैक action फैक्टर आता है ना, backed. जब सब ऑनेस्ट होते हैं. सॉरी It has to be action backed. नहीं, माय व्यू इज मैं कह रहा हूँ आप भी ऑनेस्ट मैं भी ऑनेस्ट, या आप ऑनेस्ट मैं डिसऑनेस्ट. मैं कह रहा हूँ तुम कर लो, मैं बता दूं, मैं तो भूखा हूँ, मैं तो स्टार्ट किया अभी, मैं तो कुछ भी खा लूंगा. तो इसका आंसर इज इंडिया ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए बिकॉज यहाँ पे लीगल सिस्टम वीक है. दैट्स इट. Any parting, you know, or I would say for each one of, you know, what the looking ahead together, you know, what is your parting, or, you know, this is your camera, you know, Yeah. whatever you, and you are a content creator also both, right? So as a content creator to creator, founder to founder, anything you want to suggest, feedback, or probably advice or summarize. So नहीं, more than that, more future looking. जो आपने बोला on the collaboration part between the companies, I'm excited to discuss how that plays out and how that makes the journey for the students better and the value proposition for the entire ecosystem better.
जो trust deficit shorten करने का by true collaboration. Like sure, if may not happen end to end, but it can happen one to one, and it's a start. Yeah. And that will grow 1 to 2, 2 to 3. Agree. वो start करने के लिए that's something I'm excited about. Agree. I think मेरे लिए तो I'll go back to our discussion and touch upon for the students कि do your own research. Use credible information, use all the tools that Agree. are there, but then talk to people. You will not get the absolute truth from one person. Talk to 10 people, filter information, Agree. and then get to your Yeah. decision. Agree. And then be comfortable with your decision. Yeah. Then don't blame later on Be someone else comfortable. for your decisions. Because the decision is a It's decision your you decision. made. Yeah. You cannot blame someone else for that decision. Hi. Ending note. I think for me, it's for the industry stakeholders. So there's too much resistance to change. And हुआ क्या है कि this study abroad industry अभी भी 90% of players are traditional जो 15 साल Brick and 18 साल से mortar. चलाए जा रहे हैं. हाँ. And they have developed this subconsciously कि ऐसे ही काम चले. ऐसे ही चल. But the world is changing. मतलब both AI बोल दो and Agree भाई. otherwise बोल दो global mobility बोल दो. If you are not open to new and, collaboration, new yeah. partnerships, I can say for sure, for a lot many of them, the future doesn't look. And पता है very मजे की good. बात क्या है? क्या? You know, they are the one who are shaping careers and counseling Right. of the people Yes. without being open Right. to collaborations and they might be traveling Right. the world, but they need to be more open and flexible. Done, sir. Thank you so much. Thank you.